अब आप इमेजिन करिए कैमल को सड़क से चल रहा है, कुत्ते आते हैं भौंकने के लिए। अगर कैमल झुक जाएगा तो कुत्ते उसके सर पे झुकेंगे। वो ऊपर देखता है हमेशा, वो घुटनों के ऊपर नहीं आ पाते। और कैमल कुछ नहीं करता है, वो अपना चलता रहता है। जैसे वो रेगिस्तान पहुंच जाता है, वो अपने स्ट्रेंथ एरिया में आ गया। कोई कुत्ता उसको फॉलो नहीं कर सकता रेत में, और रेत में वो अकेला चलता है। जिसमें वो डॉग्स फॉलो कर रहे हैं इस टाइम लोगों को मालूम नहीं है हाउ टू डू, क्योंकि लोग क्या करते हैं। 7th year of corporate career, Yes. your salary was 1 crore. Yes. जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से जम्मू वापस जाने के लिए, तो अखबार बिछाते थे जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट के बाहर, और वहां पे वो 30 घंटे की जर्नी में हम सो जाते। तो मैं नहीं चाहता था कि कभी जिंदगी में मेरी फैमिली कभी उस ट्रबल से जाए। अब उस डर से जो वो भागा हूँ, आज तक नहीं पता चला कि रुकना क्या होता है। दैट फियर ऑफ फेलियर स्टिल हॉन्ट्स मी। इट्स नॉट द लेयर ऑफ सक्सेस दैट गाइड्स मी। जब एक मौका आ रहा है, एक प्रेजेंटेशन आ रही है, टेक योर चांसेस, शो अप कि दैट यू कैन डू बेटर। समबडी इन द रूम विल नोटिस यू। अरे सर आप तो ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, मतलब आप हर्डल के नीचे से जाना चाहते हैं। हर्डल के नीचे से जाना भाई वक्त लग जाएगा, और वो खुद नहीं कहीं पहुंच पाए। आप कहां पहुंचोगे? When in your journey you became a leader? कि वो थप्पड़ जो मैं खुद को प्रोवर्बियली ने एक्चुअली थप्पड़ मारता था, एंड मैं खुद को याद दिलाता था तेरा ऑब्जेक्टिव है वहां पहुंचना, क्योंकि तू नहीं चाहता है वापस उस ट्रेन के अखबार बिछा के सोने के लिए। तू ये गलती कैसे कर सकता है? ये उस 17 साल के लड़के के बारे में है जो रात को कश्मीर से निकला था, और फिर भी 34-35 की उम्र में एक CEO बन गया। रातों रात 4 बजे रात को मुझे स्कूटर पे बिठा के लाल चौक में ले गए श्रीनगर में। 2 बसें सिर्फ जा रही थी जम्मू के लिए। बॉनेट पे बैठ के मेरे डैड ने मुझे उस ड्राइवर के हवाले कर दिया, बोला कि लेके जाओ इसको, एटलीस्ट इसकी जान बच जाए। Every one of us is climbing a mountain, a better career, a bigger business, a better life. But very few people stop to ask what happens after you reach the top. Well, today's guest has lived that question. At 17, he was forced to leave Kashmir overnight during the exodus. From a refugee camp, he rebuilt his life, became one of the India's youngest and most successful CEOs at just 36, and spent 16 years leading some of the country's biggest media organizations. Then came the peak of his career. He did something almost nobody does. He walked away. Why? Let's find out as we meet the best-selling author of the book, The Next Mountain, Avinash Kaul. Hi, I'm Avinash Kaul, and you're watching me on the PVT show. Avinash ji, welcome to the PVT show. Thank you so much. I am so happy that we could finally be with you here. Yes. And heartiest congratulations. This is already a bestseller, right? Yes, it is. Topping all the charts. Crazy. Number 1 in many categories and Yeah. 19th in all the books in Amazon India. I have a very hard question to ask you. Sure. And sorry, please allow me to Of begin course, this please. conversation with that. हमारे शो के और मेरे कुछ फैंस स्लैश व्यूअर्स स्लैश क्रिटिक्स हैं. उन्होंने बोला कि वी हैव अ फीडबैक फॉर यू पूनम. We feel that whoever you invite, right, you're completely sold out on the story and the book. कभी ऐसा नहीं दिखा कि कुछ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग है या कुछ anything which is like strong. And I told them only one thing. First of all, I'm sitting with my invited guests, right? I'm not sitting with my enemies. This thought should be completely away. Of course, I'm sold out on the work. That's why. Of course. Point number 2 is, roughly in India, there are around 1,500 to 2,000 movies and films that are released usually every year. You know what is the number of books? Close to about 1 lakh books. Wow. In a year. Wow. So many authors and so many I books. never imagined that number. Yeah, that is the number. Wow. As we are speaking, every day, per day, roughly 270 books are getting launched, released, or out in the So market. that's making me feel better that I was 19th in all books. In all the books, so you should feel better. Now, the matter of the fact, when there is so much, and out of so much, when we are inviting, handpicking, and wanting those memoirs and biographies and autobiographies to be here, you know, when we are inviting our guests, there is no question. I am completely sold out Absolutely. on You the should concept. Be. You should be. But here is the difficult question Please, now to by begin the all means. conversation. I've been in a difficult industry for long, Yeah, so tough questions is not something that I shirk away from. I'm sure you will welcome that. And the question is, इतनी किताबें already आ रही हैं. Why you thought this book was required? It wasn't about a book, to be very honest. It not necessarily about a book. सिर्फ ये हो जाता है कि अगर आप ये देखेंगे कि ये बुक का ओरिजिन है क्यों, ये बुक का ओरिजिन इसलिए नहीं है कि
एक सीईओ काफी देर तक अपना ज्ञान बांट रहा है लीडरशिप के बारे में, ये वो नहीं है। ये उस 17 साल के लड़के के बारे में है जो रात को कश्मीर से निकला था, रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर, टेंट्स के अंदर पड़ा था, गैरेजेस में रहा था, और फिर भी 17 साल की उम्र में, और एग्जैक्टली और 17 साल मतलब 34-35 की उम्र में एक सीईओ बन गया मीडिया कंपनी का। अब वो कैसे बना, सक्सेस स्टोरीज तो आपको लिंक्डइन में दिख जाएंगी, फेलियर स्टोरीज सारी इस किताब में। कैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में 22 मार्क लेके 100 में से मैथ्स में फेल हुआ, कैसे मैं इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में फेल हुआ, कैसे मैं राशन कार्ड की लाइन में खड़े होकर राशन लेता था क्योंकि पैसे नहीं थे, कैसे मेरा इंजीनियरिंग का एडमिशन हुआ, किन ऑड्स के दौरान ये सब हुआ। तो ये फेलियर्स की किताब है, और ये सिर्फ वो एक कंफर्ट देना चाहती है उन लोगों को जो कि कोई IIT IIM से नहीं है, जो कोई फॉरेन डिग्री लेके नहीं आए हुए हैं, और जो बहुत ही छोटे शहर से आए हुए हैं और फिर भी एक कॉर्पोरेट पहाड़ी को समिट कर पाते हैं। तो ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन एक्सरसाइज नहीं है, ये मेरे लिए एक गिव बैक मोमेंट है उन लोगों के लिए कि इसको एक फील्ड गाइड की तरह यूज करें। जब आपका बॉस आपसे एकदम खराब तरीके से बात करता है और आप दुखी हो जाते हो, तो इस बुक में एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको लगेगा, पता चलेगा कि भाई पहाड़ी पे चढ़ना आसान नहीं होता है, पत्थर गिरते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ी को गाली दो, उसका मतलब ये है कि अगली बार से जरा और चौकन्ने रहो कि पहाड़ी पे नहीं तो फिसल जाओगे, और फिसल जाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब ऐसी ऑनेस्टी और ब्रूटैलिटी में कोई लिखता नहीं आज की डेट में। करेक्ट। मैंने सारे जो फॉरेन मॉडल्स देखे हैं, मैकिन्जी, ये सब वो सब मैंने ज्यादा पढ़े नहीं है। मेरे सारे प्रोफेसर मुझे काफी बार बोलते थे कि भैया वो 7 हैबिट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े। तो मुझे ये भी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि किताब कितने लोग पढ़े या ना पढ़े, मगर अगर हमारी कॉन्वर्सेशन ज्यादा लोग सुन पाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वजह से ये एक बैकड्रॉप है, कहानी ये है जी। जो हम अब बात करेंगे। और इन चीजों की सक्सेस इस किताब की रीडरशिप से बहुत ज्यादा होगी। मीडिया में रह के इतना तो मुझे पता है, और मैं सिर्फ उसी पे काउंट कर रहा हूं कि आपकी जितनी ऑडियंस है वो सब इसको देखें, समझें, सराहें और इम्प्लीमेंट करें। माई टास्क इज डन, बट विदाउट दैट ये हमारी कॉन्वर्सेशन शायद हो ना पाती। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड I don't know if I gave you the right answer, but it's the heartfelt answer. This has to be because the concept of this whole conversation is, you know, thoughts coming from the heart. बिल्कुल, We are trying to understand you, and that is the whole point. आप अपनी किताब में भी बहुत beautifully अलग अलग जगह आपने बहुत सारे concepts की बात की है. And one of the important things that I saw, now that we are on to your journey and we'll discover you through this journey, you say that every person has a mountain or several mountains to attempt to climb in their lives. As per you, what was your first mountain from the childhood? देखिए पूनम, I'll give you an example. It's a very Sure. simple thing. मैं कश्मीर में पला बड़ा हुआ हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, एंड कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, एकदम पीसफुल था, पैराडाइज ऑन अर्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था। 19 जनवरी 1990 रात के 11 बजे when all the mosques in Kashmir started blaring out कि काफिरों को मार दो एंड ये सब वो सब, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हुई उस रात को। मैं 17 साल का था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया कि भैया तुम जाके किसी और के घर में रह के यू नो literally convert yourself into a different religion at that point of time, not convert in the sense like but hide there, Yeah. right, so that you are not killed. और उसके बाद कर्फ्यू लग गया। My dad thankfully at that time was an executive magistrate, उनके पास कर्फ्यू पास होता था। तो दूसरे दिन रातों रात 4 बजे रात को मुझे स्कूटर पे बिठा के लाल चौक में ले गए श्रीनगर में। बर्फ का मौसम था क्योंकि 19 जनवरी 1990 का था। 2 बसें सिर्फ जा रही थी जम्मू के लिए, उसमें से एक बस में सारी फुल थी, दोनों बसें। बॉनेट पे बैठ के मेरे डैड ने मुझे उस ड्राइवर के हवाले कर दिया, बोला कि लेके जाओ इसको, एटलीस्ट इसकी जान बच जाएगी। You just alone. आई वॉज अलोन बिकॉज आई वॉज 17। हो सकता है कि कोई टारगेट कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा, यूथ के ऊपर ज़्यादा होता था। तो उन्होंने बोला निकल जाओ। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई एड्रेस था जाने के लिए जम्मू में, क्योंकि हम एक प्लिंथ डाल रहे थे एक घर की, और उस घर के पास एक नेबर था जिसका गैरेज था। मैं उस गैरेज में जाके रहा, 2-3 महीने उस गैरेज में रुका, क्योंकि और कोई रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था मैसूर में,
तो जितने पैसे वगैरह थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों मेरे पेरेंट्स थे, तो इतना कोई एक्सेसेस नहीं थी कि हम कुछ कर पाते। वहाँ रुका, एग्जाम लिख के गया था 11th स्टैंडर्ड का कश्मीर से, और वहाँ पे कुछ टॉप स्टूडेंट्स को, जहाँ पे मैं खुद को टॉप नहीं समझता था, मगर फेल कर दिया इंग्लिश में। PCM में 85% थे, इंग्लिश में फेल कर दिया, एडमिशन नहीं मिली जम्मू में। तो फिर गवर्नमेंट ने एक स्टेडियम के बाहर टेंट्स लगाए थे, जहाँ पे वाटर टैंकर्स आके फिल हो जाते थे। उन टेंट्स के अंदर मैंने अपनी 12th पढ़ी है, और वही करते करते मैं अपना घर बना रहे थे। उस घर जब बन गया, छोटा सा घर था, 6 फैमिलीज एक ही घर में रह रही थी, 6 किचन चल रहे थे एक ही घर में, क्योंकि सारे लोग कश्मीर छोड़ के जम्मू आ गए थे। अब उस माहौल में आप ये सोचिए, आप 12वीं क्या पढ़ेंगे। तो जब सारे लोग सो जाते थे, छत पे भी लोग सोते थे, उसके ऊपर एक और छत थी, वहां पे बैठ के लाइट लगा के, जैसे बॉलीवुड मूवीज में देखेंगे। इट वॉज नॉट दैट ग्लैमरस, बट मजबूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो 12वीं मैंने वैसे पढ़ी है। और फिर उस टाइम पे थैंकफुली एक एक सीट मिलने लगी थी, लोगों को, कश्मीरी पंडितों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। उस चक्कर में मेरा एडमिशन हुआ था अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, संगमनेर एक करके जगह है, पुणे और नासिक के बीच में, शुगर फील्ड्स के बीच में, शुगर मिल के साथ में, वहां मेरा एडमिशन हुआ। तो अब आप ये सोचिए कि जिस दिन, जो आपका सवाल है, मैं पहाड़ी खोजने नहीं गया था, पहाड़ी मेरे सामने आ गई उस रात को, जब मैंने बानेहाल टनल क्रॉस की थी बिटवीन जम्मू, श्रीनगर एंड जम्मू। अब आपके पास अगर पहाड़ी आ जाएगी, आपके पास ऑप्शन क्या है? अंग्रेजी आती नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर रात को, शाम को 4 बजे आता था। इंग्लिश मिशनरी स्कूल में जरूर था, मगर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश नहीं आती थी। आप कभी कश्मीर से बाहर ज्यादा निकले नहीं हो, तो आपका कोई कॉर्पोरेट कनेक्शन नहीं है, दोनों पेरेंट्स आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो आप किसी को नहीं जानते हो दिल्ली बॉम्बे में। तो और आपका करियर अब कश्मीर में नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी एम्बिशन थी कि REC से कर लूं, PWD डिपार्टमेंट में इंजीनियर बन जाऊं, रिटायर हो जाऊं, वहीं पे इवेंचुअली यू विल पास अवे। ये आपकी एम्बिशन थी? ये उस टाइम पे एम्बिशन थी, क्योंकि कोई एम्बिशन नहीं थी, राइट? क्योंकि जरूरत नहीं थी एम्बिशन की, आप खुश थे, एनवायरनमेंट अच्छा था, पहाड़ियां चढ़ता था हर साल अपने स्कूल के दौरान, और उन्हीं पहाड़ियों ने मुझे जिंदगी सिखाई, और उन्हीं पहाड़ियों की बदौलत मैं कॉर्पोरेट की पहाड़ी चढ़ पाया। और वही लर्निंग्स जो मेरी कॉर्पोरेट की हैं, वो पहाड़ियों की है, वही मैंने इस किताब द नेक्स्ट माउंटेन में लिखी है। नेक्स्ट समिट नहीं है, नेक्स्ट माउंटेन है, क्योंकि पहाड़ी चढ़ने के सारे रूल्स एग्जैक्टली वही हैं जो कॉर्पोरेट के क्लाइंबिंग के रूल्स हैं। और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते करते मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा कि अंग्रेजी ना बोलते हुए भी 17 साल में रातों रात निकल के भी मैं 35 या 36 की उम्र में मैं यंगेस्ट अमंग द यंगेस्ट CEOs बना मीडिया में। पर ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? यंगेस्ट CEO तो बने, बट विद इन 7th year of your working, you're amongst, I think, the only person, or I mean, in the research we could not find anyone else. You were earning a salary of 1 crore. That's right. That's right. Within 7th year of corporate career, yes, your salary was 1 crore. Yes, and I started as a junior coordinator. I was literally punching in release orders in television, and I was doing all the basic work doing there in Discovery Channel, because मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, उसके पहले भी काफी सारे इंस्टेंसेस हुए थे। वो जॉब कैसे मिला, जो एंट्री लेवल जॉब था? वो एंट्री लेवल जॉब इसलिए मिला था कि पहले मैंने MBA जब सिडनम से किया था, तो उसके बाद मैं अपने ड्रीम जॉब, मेरा डे 0 में हुआ था जॉब, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स फल्क्रम मीडिया प्लानिंग में, वहां से शुरू हुआ था। पैसे मिलते नहीं थे, 2 लाख रुपए थे। उसके पहले मैंने पहली जॉब की थी 3,150 रुपए की। पूरे साल के 2 लाख रुपए? पूरे साल के 2 लाख रुपए। उसके पहले 3,150 रुपए महीने के थे, जो मेरे बिलिस में थे। जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला था, तो एक मेरे प्रिंसिपल के दोस्त थे, उनकी कंपनी थी, वो CEO थे वहाँ के, तो उनने मुझे एक जॉब दी थी, स्टीम टरबाइन डिजाइन करती थी वो कंपनी। 2 महीने में समझ आ गया कि ये पहाड़ी मेरे लिए नहीं बनी हुई है, तो 3,150 के रुपए लेके मैं 2 महीने के बाद वापस जम्मू चला गया था, कि सोचा कि कोई कुछ थोड़ी पढ़ाई करूंगा, शायद MBA करूंगा। वो की नहीं। फिर एक ऐड आया, एक वॉक इन इंटरव्यू आया, MNC रिक्वायर्स ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज। तो दिल्ली में साउथ एक्स में इंटरव्यू था, तो मैं और मेरा एक दोस्त थे राजेश, है ना, जम्मू से निकले, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कुछ होने नहीं वाला था, पहुंचे वहां 250 लोग थे इंटरव्यू के लिए, और सारे 80-85% IIT IIM REC से, IIM नहीं, IIT REC से, और मैं रैंक होल्डर था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट दैट पहले सेमेस्टर में फेल हो चुका था। फिर फाइनली रैंक होल्डर हो गया, नंबर 1 था अपने ब्रांच में। 69% पुणे यूनिवर्सिटी का टॉपर माना जाता था,
66 शायद उस टाइम पे डिस्टिंक्शन होता था, बट बाकी में 75 डिस्टिंक्शन होता था। और वो लोग Fair. काफी ज्यादा मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल थे। 250 में से एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ। मेरे फ्रेंड ही कुडंट मेक इट देयर, तो इसे चल यार अभी खाना खाते हैं, लेट हो गया, ये सब फालतू में तेरा कुछ होने नहीं वाला है, चल। मैं बोला एक और कर लेते हैं यार राउंड, एक और कर लेते हैं। करते करते 8 9 राउंड हो गए एंड सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से एक मैं था। और वो सैलरी थी 6,000 रुपए महीने की। डबल हो गया। और 6,000 रुपए के साथ 1 साल का बॉन्ड साइन मतलब 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ा टाइमेक्स के साथ कि छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। और कोई चॉइस नहीं थी, 6 महीने बाद छोड़ दिया। और अगर आज वो सुन रहे हैं तो प्लीज माफ कर दीजिए, इतने साल बाद मेरे से 1 लाख रुपए ना मांगिए, क्योंकि मैं किसी को बगैर बताए मैं वहां से निकल पड़ा। वो मैं एमबीए का एग्जाम लिखने आया, दूसरी बार ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू भी किया और वापस से हो गया। और वो भी इस बार भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक सीट थी एमबीए इंस्टीट्यूट में, तो मैं 4th था। पहला वाला जमनालाल बजाज जाते थे, दूसरा वाला उस टाइम पे सिम्बायोसिस या नरसिम्हन जी जाते थे, और तीसरा चौथा मैं सिडनम में गया था। तो वैसे शुरुआत हुई थी इस पर्टिकुलर काम की। तो जब ये हो गई मेरी इंजीनियरिंग की, मतलब मैंने जॉब साइन कर ली हिंदुस्तान थॉमसन की 2 लाख रुपए में, देन आई एट दैट टाइम इन माई एमबीए, मेरी 1 साल जूनियर मेरी वाइफ थी, जो अब की वाइफ है। तो वी गॉट मैरिड इन 2000 एंड her family was relatively more affluent. They were based in Bombay at that time. There was hardly any money, right? And I remember at that time my father-in-law would tell me that you cannot afford her and XYZ kind of a thing. So it wasn't the happiest of things at that point of time. और genuinely मेरे पास कुछ था नहीं. It was just few lakh, 2 lakh rupees in a year is hardly anything. Yeah. तो वो करने के चक्कर में मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, even though I loved it, right? और मेरे को डिस्कवरी चैनल में नौकरी मिली और वहां पे मैंने जूनियर कोऑर्डिनेटर से शुरू किया, क्योंकि बिकॉज आई नीड द मनी फॉर माई मैरिज, बिकॉज अदरवाइज आई वुडंट गेट मैरिड। सो जो ये सवाल आपने पूछा कि आपको कैसे किया, तो ये मोटिवेशन थी कि भाई कर लो थोड़ा। ऐसा कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी, शायद 3-3.5 लाख की थी, बट स्टिल 2 लाख की बेस से तो काफी अच्छा था। Correct. वहां से काम शुरू किया, और वहां से जो शुरू किया, और अगर आप नॉर्मली ये हो जाता कि भाई फिर आप यहां से वहां कहाँ पहुंच गए, तो मेरा एक सिंपल फंडा होता था। मेरे सारे जितने भी दोस्त लोग थे कंपनी में जो मेरे साथ काम करते थे, वो 6 बजे काम बंद करके निकल जाते थे, बोलते थे इतने पैसे में इतना ही काम होगा। और मेरा रिवर्स होता था, क्योंकि मैं उनका काम ले लेता था, फाइनेंस का, लीगल का, एचआर का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं रिसर्च में था, सेल्स का, उन सब लोगों का काम बैठ के मैं 12-1 बजे 2 बजे जाते थे मेरे काम में। वो लोग बोलते थे तुम पागल हो, तुम क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला यार देखो, कंपनी एक तो सीखने को मिल रहा है मुझे, दूसरी चीज और बेस्ट इज मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी पैसे दे रही है। और अगर गलती भी करूंगा तो कंपनी भुगतेगी, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। तो व्हाई शुडंट आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट लर्न एंड डू लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है कि आपके दोस्त नहीं होते हैं, आपको भी दारू पियोगे नहीं, वो तो कभी पी नहीं है मैंने जिंदगी भर में, क्योंकि पैसे नहीं थे। आई विल नॉट मेक अ वर्च्यू आउट ऑफ इट, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं जाता था 450 रुपए मुझे महीने के मिलते थे। 400 रुपए मेस में जाते थे कैंटीन के, 50 रुपए बचते थे। 4 संडेज 10-10 रुपए का फ्रूट कस्टर्ड खाता था, 50 रुपए बचते थे महीने में। उसमें मैं 3 रुपए की मूवीज देखता था एक वीडियो हॉल में जो हाईवे पे होता था, पुणे और नासिक के बीच में हाईवे, ट्रक ड्राइवरों के साथ पत्थरों पे बैठ के जमीन पे। वो तो वीसीआर होता था, एक फ्रेम लगाते थे, एक स्क्रीन लगाते थे और वीसीआर लगा के वो मूवीज दिखाते थे। 3 रुपए में वो मूवीज देखता था मैं। अब अगर वो करूंगा तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। संडेज को खाना मिलता नहीं था, क्योंकि मेस बंद हो जाती थी शाम को, क्योंकि लोग होटल्स में जाते थे। Correct. मेरे पास पैसे नहीं थे। काफी ऐसे हफ्ते हुए जहां, क्योंकि वो शुगर फील्ड्स थे, वहां पे प्याज भी उगाते थे, सिर्फ प्याज जमीन से उखाड़ के खा के सो जाते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे कुछ भी। अब उसमें आप कहां से आप अल्कोहल में जाओगे, कहां से आप किसी और वाइस में जाओगे, क्योंकि दोज लग्जरीज वर नेवर मेंट फॉर मी। सो वो एंटायर टीनेज ईयर्स, और जितने भी आप बोलोगे 17 साल से, यू मैच्योर फार अर्ली इन लाइफ, एंड देन यू डोंट हैव any other of these luxuries that will kind of take you away from what your path is. So वो जर्नी हुई है। तो वही फिर मेहनत करके, रातों रात करके, ये करके, जो आपने नंबर बताया 1 करोड़ का, गॉड हैज बीन काइंड। क्योंकि मैं जब दूसरे लोगों का काम करता गया, मुझे कोई एम्बिशन नहीं था, पता नहीं था कि सीईओ क्या करता है। Correct. या सीईओ होता क्या है। करता गया, प्रमोट होता गया, डबल प्रमोट होता गया, एंड बिफोर आई रियलाइज इस पहाड़ी पे चलते चलते, क्योंकि सिर्फ एक ही पता था, वापस नहीं जाना चाहता था। वो उस दिशा में, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से जम्मू वापस जाने के लिए, पैसे नहीं होते थे टिकट के, तो अखबार बिछाते थे जनरल कंपार्टमेंट के टॉयलेट के बाहर, और वहां पे वो 30 घंटे की जर्नी में हम सो जाते थे।
खाने के पैसे नहीं होते थे, हार्डली कुछ होता था, वो जर्नी की हुई है। तो मैं नहीं चाहता था कि कभी जिंदगी में मेरी फैमिली कभी उस ट्रबल से जाए। अब उस डर से जो वो भागा हूं, आज तक नहीं पता चला कि रुकना क्या होता है। दैट फियर ऑफ फेलियर स्टिल हॉन्ट्स मी। इट्स नॉट द लेयर ऑफ सक्सेस दैट गाइड्स मी, इट्स जस्ट द फियर ऑफ फेलियर। एंड वो एक इतना एनर्जाइजिंग फ्यूल है कि आपको कभी रुकने नहीं देता है, आपको कभी थकने नहीं देता है, क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ने की चलते हो। तो वो पहाड़ी पे चढ़ते 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 कब 1 करोड़ क्रॉस हो गया, कब 2 करोड़ क्रॉस हो गया, कब ये करोड़ क्रॉस हो गया और कब मैं समिट पे आ गया, पता नहीं चला। 12 साल में जूनियर कोऑर्डिनेटर से सीईओ की जर्नी तय की है और फिर 16 साल उस समिट पे सीईओ के रूप में 2-3 कंपनीज में रह चुका हूं। So when you say fear of failure became your fuel, ये by choice नहीं था ना? ये बाय चॉइस नहीं, ये बाय चॉइस नहीं है। तो if you were to tell somebody today that what should be your fuel, because कई लोग होते हैं जो fear of failure की ही वजह से शायद forget the summit, mountain climb करने से भी घबराते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा Sure. बताता हूँ चीजें, एंड आई विल कम बैक टू द उस बंदे को क्या बोलें जो जिसके पास ये फ्यूल नहीं है या जिसके पास ये फ्यूल रन आउट हो जाता है, उसको क्या बोलें, उस पर भी आऊंगा। मेरी एक जनरल फिलॉसफी लाइफ में ये है कि या तो आप वर्टिकल ट्रैवलर हैं या तो हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर है। और मेरा ये मानना है कि हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर्स 99% ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट और 95 एटलीस्ट आर हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर्स। अब हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर की डेफिनेशन मेरे दिमाग में ये है कि जहां पैदा हुए वहां के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे में ही आप पूरी जिंदगी बिता देते हो और वहीं पे मर जाते हो। सो देयर इज नो ग्रेट एम्बिशन बिकॉज यू आर बिजी विद एवरीथिंग एल्स अराउंड, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशलाइजिंग, एवरीथिंग XYZ। मुझे आपने बताया कि आप ग्वालियर से आई हैं, अब ग्वालियर से बॉम्बे की जर्नी आपकी भी सुनने लायक होगी। वो किसी दिन जब मैं कभी पॉडकास्ट होस्ट कर रहा होगा और आप मेरे गेस्ट होंगे तब आप जरूर बताइएगा। Yes, sir. मगर क्योंकि आप वहां से यहाँ पे आ चुकी हैं और आप इतनी सक्सेसफुली आज पॉडकास्ट रन कर रही हैं, Thank you. आपने अपना कॉर्पोरेट करियर भी छोड़ा, एक टॉप मोस्ट सीईओ BFSI सेक्टर में छोड़ के, तो आपने भी वो मोटिवेशन ढूंढी है, आपने भी वो फ्यूल ढूंढा है। और वो जो अनसेटल्ड स्टेट होते हैं आप भी उसमें से गुजरे हैं और आज भी आप रुक नहीं रही हैं, आप आगे चल रही हैं। तो वो फ्यूल ढूंढना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि अपने को एक फॉल्स शॉक देना पड़ता है जो रियल नहीं है, जस्ट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और एक जोक होता था मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, काफी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं उनको बोलता था भैया जब भी मोटिवेशन कम हो काम में ना, एक होम लोन ले लो, एक घर खरीद लो, राइट? क्योंकि आपके घर वाले तो समझ जाएंगे मगर वो जो रिकवरी एजेंट है वो आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। तो EMI पे करने के लिए आप कभी नौकरी नहीं छोड़ोगे। आपका बॉस आपको गाली भी देगा मगर आप फिर भी EMI भरते रहोगे और वो आपके करियर की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा, राइट? सो समटाइम्स दीज काइंड्स ऑफ हैक्स आल्सो वर्क, बट मोर इंपॉर्टेंटली समटाइम्स यू हैव टू इंड्यूस अ शॉक वैल्यू इनटू योर लाइफ। एंड वो अगर आप आज मुझे देखेंगे एट 53, मैं 16 साल के CEO के बाद क्यों नौकरी छोड़ा? मैं अपनी बॉडी को शॉक देना चाहता था क्योंकि मैं और ऊपर एक पहाड़ी पे चढ़ना चाहता हूं। और मैं कभी आफ्टर बीइंग अ कॉम्प्लेसेंट CEO फॉर सो मेनी इयर्स, कॉम्प्लेसेंट इन द सेंस लाइक आप अभी यूज्ड हो जाते हो लाइफ के, कॉम्प्लेसेंट काम की तरफ से नहीं बट थिंकिंग की तरफ से, क्योंकि जो एनर्जी आपकी 25 की साल में है वो आपकी 53 में नहीं रहेगी। तो हाउ डू यू एनर्जाइज योरसेल्फ? द ओनली वे यू कैन डू इट इज यू कांट फेक इट, यू हैव टू बी रियल। दिस इज द टाइम जहां मेरे सबसे पीक एक्सपेंसेस हैं। मेरे दोनों बच्चे ड्यूक जा रहे हैं यूनिवर्सिटी इन US. They're the topmost, toppers in IB. In both of them were toppers, 45 on 45. Both of them had the topmost SAT scores of 1580 out of 1600. Oh, wow. Both of them are in Duke, so which is the biggest blessing in life, more than any other corporate career or anything else could have had in my life. And the highest peak expenses are now. And at this time, people tell me कि भैया तुमको क्या हो गया? कौन से बकल कुत्ते ने काटा था आपको कि आप इस टाइम पे छोड़े? बट अगर ये जेन्युइन नहीं होगा और मैं अपने पर्पस को ढूंढने नहीं चलूंगा, आई विल फील दैट आई एम अ फ्रॉड, आई एम फेकिंग इट। और मैं फ्रॉड चीज जिंदगी में ना कभी की है ना कभी करूंगा। आई वॉन्ट टू स्टे ट्रू बिकॉज वॉट दैट इज माई लाइफ, दैट इज माई बुक एंड दैट इज माई पर्पस। और वही चीज अगर आप इसमें देखेंगे, मेरी बुक के 3 शब्द लिखे हुए हैं बुक में नीचे, रेजिलियंस, लीडरशिप और पर्पस। मेरे पहले 20 साल 19 जनवरी 1990 से लेके 10 जनवरी 2010 तक जब मैं पहली बार CEO बना, ये रेजिलियंस का पीरियड है। ये शब्द वो शब्द है जो मुझे तब नहीं आता था क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। CEO बनने के कुछ फायदे हो जाते हैं कि ये सारे जार्गन समझ आ जाते हैं, ये जार्गन समझ आ जाते हैं। तो अब रेजिलियंस लोगों को समझ आता है तो मैं इसे रेजिलियंस बोलूंगा। उसके बाद के 16 साल जो CEO की जर्नी रही है उसको मैं लीडरशिप का रोल दूंगा क्योंकि वो लीडरशिप है,
क्योंकि टीम्स चला रहे हैं आप, एक टॉप ऑफ द हीप पे हैं, बैठे हुए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, एंजॉयमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट। और उसके बाद 31 मार्च 2026 से मेरा पर्पस का फेज शुरू होता है और जो सबसे फुलफिलिंग होता है। अब काफी लोगों के लिए हो सकता है कि वो अर्ली अपना पर्पस डिस्कवर कर लें और वो पहले पर्पस कर लें, फिर रेजिलियंस कर लें, फिर लीडरशिप कर लें। काफी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर वो बिजनेस फैमिली से ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, उनका पहले लीडरशिप आता है, करेक्ट। देन कभी कभी चीजें खराब हो जाती है तो रेजिलियंस आती है और बाद में लेटर लाइफ में पर्पस ढूंढ लेते हैं। चीजें यही हैं, ऑर्डर बदल जाता है लोगों की जिंदगी में। मेरी जिंदगी के कुछ क्वालिटीज, मेरी जिंदगी में मैंने अपने प्रॉपर जिस सीक्वेंस में आए हैं मैंने उसी में रखा है। कोई और अपनी डिफरेंट सीक्वेंस में रखे, बट आता जरूर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये वो जर्नी है। आप कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने स्पेसिफिकली पूछा कि उस बंदे को क्या बोला जाए कि फियर ऑफ फेलियर के लेके क्या करें। सवाल ये होता है कि आप चढ़े किस फ्यूल को लेके थे पहाड़ी पे। आप पहाड़ी पे घूमने के लिए आए थे या आप सीरियसली रेस्पेक्ट करने आए थे पहाड़ी को? क्योंकि अगर घूमने आए थे ना, आपकी वो जो मोटिवेशन होती है ना, चलो यार सारे दोस्त लोग चलते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब पहाड़ी पे चढ़ते हैं, 100 मीटर चढ़ के हांफने लग जाते हैं। क्योंकि हैवरसैक में सारे शुगरी आइटम भरे होते हैं, भारी चीजें होती हैं, किताब, क्योंकि उनको लगता है कि ऊपर बैठ के थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ के ना किताब पढ़ेंगे, म्यूजिक सुनेंगे आराम से। आप पहाड़ी की तौहीन कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं करियर की। क्योंकि करियर वॉक इन द पार्क नहीं है, उसमें सीरियस होना पड़ता है। एयरपॉड हटा के आपको पूरा विनम्रता से क्लाइंब करना पड़ता है। रूल्स ऑफ द माउंटेन क्या है? रूल्स ऑफ द माउंटेन ये हैं कि आप जब चढ़ते हैं, आप सबसे पहले अपना हैवरसैक को बहुत हल्का कर देते हैं। हैवरसैक हेवी होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगा, डिस्प्लेस हो जाओगे, गिर जाओगे और थक जाओगे। अब हैवरसैक में वजन क्या होते हैं? वजन होते हैं दोस्तों के, वजन होते हैं दुश्मनों के, वजन होते हैं अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस के। क्योंकि आप एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हो, वो वजन दिखता नहीं है मगर सबसे बड़ा होता है। उससे बड़ा वजन होता है आपके पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी का। कितनी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, और वो इनविजिबल वेट आपको पुल डाउन कर लेता है। तो सबसे पहले आप ये वजन को हटाने की कोशिश करते हैं। सब हटते नहीं है, मगर जितने हटा सकते हैं उतना हटाते हैं, और फिर आप पहाड़ी पे चढ़ते हैं। और उसमें एक चीज बहुत जरूरी होती है जो आपको पैक करनी होती है, जो कभी पहाड़ी के चढ़ते हुए काम नहीं आती, मगर जब आप पहाड़ी के समिट पे होते हैं, उस चीज के बगैर आप पहाड़ी पे समिट पे रह ही नहीं सकते। यू मीन कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी? आप कॉर्पोरेट बोल लीजिए, आप माउंटेन बोल लीजिए, जो भी बोल दीजिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको पहले बहुत भारी होती है, मुश्किल होती है कैरी करना, और आदमी बहुत बार सोचता है यार इसको छोड़ देते हैं, उससे अच्छा तो बिस्किट्स पैक कर लूं, कोई एनर्जी ड्रिंक पैक कर लूं, ये क्यों पैक कर रहा हूं। मगर उस चीज के बगैर आप ऊपर रह नहीं सकते काफी देर तक। अगर आप टच एंड गो करने वाले, ऊपर टच करके नीचे जाने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो पहाड़ी तो आप, ऊंची पहाड़ी हो नहीं सकती है। वो छोटी पहाड़ी आप डे पिकनिक जाके टच करके वापस आ गए, लोनावला की पहाड़ी नहीं बोल रहा हूं। वो चीजें हैं आयरन पेग्स, बहुत भारी होते हैं, और वही चीज आपका टेंट बांध के रखती हैं एट द समिट। क्योंकि वहां पे हवाएं बहुत तेज, हवाएं हैं, आंधी तूफान है, बर्फ है, ओले गिरते हैं। हल्की सी हवा में आपका तंबू उड़ जाएगा। हाँ। आपके तंबू को जगह में रखने के लिए वो पेग्स जरूरी हैं। और वो पेग्स क्या हैं? वो पेग्स है आपके ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, परसिवरेंस और पेशेंस। और करियर में भी अगर आप शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे, पहाड़ी शॉर्टकट को रिवॉर्ड नहीं करती है, वो आपको मार देगी। क्योंकि फिसल जाओगे, गिर जाओगे। एग्जाम्पल से समझे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी शॉर्टकट होता है, आप कोई, मान लीजिए मैंने पीडिया प्लानिंग का काम कर लिया, किसी ने मुझे आके बोल दिया कि भाई मेरे ये कर दे शॉर्टकट, एंड तू एक्स्ट्रा कुछ पैसे ले ले। ऐसा होता है, कुछ भी होता है। 20 रास्ते होते हैं लोगों के करने के, किसी को फेवर्स करने की, किसी को कुछ करने। अगर आप उन शॉर्टकट से लग रहा है आपको कि आप शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, आपके करियर को आगे निकल जाएंगे, आप गलती कर रहे हैं। इट विल कैच अप विद यू समडे। आज नहीं, कल परसों कभी ना कभी करेगा। और अगर मैं वो करे बिना भी 12 साल में CEO बन सकता हूं, तो कर सकते हैं लोग। करेक्ट। क्योंकि मैंने तो कोई IIT IIM कुछ नहीं किया हुआ है। मैं तो किसी एवरेज से स्कूल से निकला हुआ हूँ, एवरेज से मतलब कॉलेजेस से निकला हुआ हूँ, और फिर भी कहीं पहुंच गया। और वही मेरी एक जर्नी है कि मैं सबको बता पाऊं कि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हैं।
राइट? तो ये मेरी पूरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, मतलब जो भी ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि एनीबडी कैन डू इट, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट मी, राइट? एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आपने पूछा था, सॉरी आई मिस दैट स्पेसिफिक पॉइंट दैट यू वर आस्किंग मी अबाउट. What are the 4 things that, you know, and So, you explained it हाँ, well. मैंने आपको वही बताया कि ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीजें जब आप सीईओ बनते हैं ऊपर, इन्हीं चीजों से आपका टेंट बरकरार रहता है. और मेरा टेंट 16 साल तक वहां रहा, और बहुत सारे आंधी तूफान आए मगर मेरा टेंट नहीं उड़ा. और काफी लोग यंगस्टर्स ये टेंट छोड़, ये सारे पेग्स को छोड़ देते हैं, या सोच रहे थे कि यार प्लास्टिक वाले ले लेते हैं, वजन कम है. भाई पहाड़ी पे प्लास्टिक का काम नहीं है. भारी चीजें, भारी पहाड़ के ऊपर, भारी मौसम के अंदर यही चीजें काम आती है. और ये सबसे मुश्किल होता है किसी को मोटिवेट करना कि भाई इसको ना फेंको, इसको पकड़ के चलो. फिर काफी लोगों में ये होता है कि थोड़ी पहाड़ी चढ़ के घूम के नजारा एंजॉय करने लग जाते हैं. क्योंकि पहाड़ी का एक रूल है, अगर आप पीछे घूम के देखेंगे आपको वर्टिगो हो जाता है, आपको लगता है कि वो आपको पहाड़ी से फेंक देंगे खुद को. पीछे ना देखिए. मैंने 28 साल तक पीछे नहीं देखा. जब पीछे देखा तो किताब के लिए देखा और किताब लिखी. प्रिया कुमार जी ने मेरे साथ लिखी हुई है, वो तब मैंने देखी. जब तक मैंने कभी नहीं देखा कि मैं कितनी दूर आया हूं, क्योंकि अदरवाइज लगता है अरे यार पहाड़ी कितनी नीचे, मैं बहुत ऊपर आ गया, मैं तो सक्सेसफुल हो गया. अरे आप सक्सेसफुल बनने के लिए पहाड़ी नहीं चढ़े थे. आप चढ़े थे क्योंकि आपको पहाड़ी से मोहब्बत है, आपको पहाड़ी चढ़ना अच्छा लगता है. और ये उन्हीं लोगों के लिए है कि आप पहाड़ी पे क्यों चढ़े थे. अगर आप राइट रीजन से चढ़े थे, आपको डिमोटिवेशन होएगी ही नहीं. मगर आपको ये लगा था वॉक इन द पार्क है कि भैया इतने में ही होगा, क्योंकि आपने करियर को एक इनकम मशीन बना रखी है. आपने करियर को कभी एक पर्पस बनाया नहीं है. यू नेवर फेल इन लव विद योर करियर. इफ यू फॉल इन लव, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर स्पाउस और द पर्सन और अ बॉयफ्रेंड, अ गर्लफ्रेंड. यू टेक एन एफर्ट उनको समझने के लिए, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है. आप पूरा समय बिता दें उनके लिए, सारे लाइक्स डिसलाइक्स, और आप खुद की लाइफ को एडजस्ट कर देते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो. और हर रिलेशनशिप में बम्प्स आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, ड्राइव स्पेल्स आते हैं, ये सब आते हैं, बट आप गिव अप नहीं करते हैं. सेम आपके करियर में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, और आप कभी गिव अप नहीं करते हैं. बट काफी लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो रिप्लेसेबल है. हर 2 साल बाद अगर आप रिलेशनशिप चेंज कर देंगे, कहां आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है. अगर आप हर 2 साल बाद जॉब चेंज करने वाले हैं, तो कहां वो मिलने वाला है ग्राविटास, जहां आपका पर्पस डिलीवर होगा कि आप पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं. वेरी वेल सर. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वही लेसन है. आप मोहब्बत कीजिए अपने पर्पस से, अपनी पहाड़ी से. आप डिमोटिवेट कभी नहीं होंगे. करेक्ट. और फिर आप इसलिए नहीं चढ़ रहे हैं कि आपको वहां पे जाके पीक पे सेल्फी लेनी है. क्योंकि जैसे ही आप पहाड़ी क्रॉस करेंगे, पूनम जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो किताब में भी है, वो है ट्री लाइन का. बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आपको पता है कि ट्रीज नहीं होते हैं. करेक्ट. अगर आप लद्दाख जाएंगे, कोई ट्रीज नहीं है, पहाड़ियां जरूर हैं. कॉर्पोरेट लाइफ में वो तब आता है जब आप सी लेवल क्रॉस कर लेते हैं, CXO. तब आप बीच में वाटर कूलर में घूम जाते हैं लोगों के बीच में, आप डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में नहीं होते हैं. जैसे ही आप CXO बने, दूर से पहाड़ी के नीचे वाले लोग भी आपको देख पाते हैं और लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल लेके आपको मार सकते हैं, क्योंकि टारगेट आपके बैक पे हमेशा रहता है. तो आपको हमेशा चौकन्ना रहता होता है कि कोई ऐसे काम न करे. इसको डिकोड करते हैं कि स्नाइपर आपके ऊपर रहता है, हमेशा रहता है. क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप अपने पाथ पे चल रहे हैं, और न तो आप दोस्त बना रहे हो न तो दुश्मन बना रहे हो, मगर जिसको भी आप क्रॉस करते जा रहे हो, चाहे वो पुराने बॉसेस हो. अगर मैं 36 साल की उम्र में CEO बना, तो मेरे रिपोर्टिंग लोग काफी सारे 50s में थे, 40s में थे. करेक्ट. और कभी ना कभी मैंने उनको क्रॉस किया होगा करियर में, तभी तो वो मैं उनका बॉस बन गया. करेक्ट. अब वो कैसे करते हैं, और कहीं पे कुछ लोगों में रिजेंटमेंट रहेगी, और वो लोग आपके वेलविशर नहीं रहेंगे, मगर आपको केयर नहीं करना है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं. राइट. आप उनको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी मोहब्बत में चल रहे हैं पहाड़ी के. राइट. और वो पहाड़ी में एक पीक आ जाता है, दूसरा पीक आ जाएगा, तीसरा पीक आ जाएगा, अब चलते जाएंगे. तो ये नेगेटिविटी रहती है, ये हर करियर में रहती है. और उसके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी मेरे पास है, जिसको मैं ऑब्स्टिकल रेस कहता हूं. वो ऑब्स्टिकल रेस किताब में भी है कहीं ना कहीं शायद. वो सिंपल है कि आपको आपका करियर को डिफाइन करना है कि भाई आप 100 मीटर रेस ऑब्स्टिकल रेस है, और
अगर मेरे मान लीजिए जूनियर कोऑर्डिनेटर से सीईओ के बीच में शायद एटलीस्ट 10 ऐसे टाइटल तो आ चुके होंगे, बिल्कुल जूनियर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, वीपी, सीनियर वीपी, एग्जीक्यूटिव वीपी, सीओओ, सीईओ, द ट्रेडिशनल, राइट? ये हम सब लोग जर्नी कर चुके तो हैं। आप कह रहे हैं ये सारे डेजिग्नेशंस ऑब्स्टिकल्स हैं, मैं बोल रहा हूँ इन चीजों के अंदर दे आर ऑल हाँ। पिट स्टॉप्स, पिट स्टॉप्स राइट? ऑन द अब जब आप शुरू कर रहे हैं हाँ तो कोई आपका बॉस रहा है, करेक्ट, ठीक है? अब आपकी जर्नी में डिपेंडिंग अगर वो फुल स्पीड पे जा रहे हैं और आप उनके साथ जा रहे हैं तो वो ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे। मगर अगर वो वहीं पे रुके हुए हैं और काफी साल से रुके हुए हैं और आप आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं 12 साल में सीईओ बन रहा था तो काफी ऐसे लोग थे जो 12 साल से असिस्टेंट मैनेजर पे थे वेट कर रहे थे आगे या मैनेजर पे थे, वो सीईओ नहीं बन पाए। तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे नहीं जा रहे हैं तेजी से तो डिफिनिशन से आप ऑब्स्टिकल बन चुके हैं, राइट? आप बॉटलनेक बन चुके हैं, आप ऑब्स्टिकल बन चुके हैं बिकॉज यू स्टेड फार टू लॉन्ग इन द सेम पोजीशन, राइट? ना काफी लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं अपनी खुद की जिंदगी में, करेक्ट, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लगेगा कि भाई मुझे ऑब्स्टिकल क्यों बोला। हाँ अरे अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आपको पता चल जाएगा इतने सालों से आप कहीं नहीं जा रहे हो तो ऑब्स्टिकल ही हो ना किसी दूसरे के लिए, और Correct. खुद के लिए आप एक ही जगह पे बैठे हुए क्योंकि आप चिल मार रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप पहाड़ी पे पीछे देख के नजारा देख रहे हो, आप सेल्फी ले रहे हो। अरे उसके लिए पहाड़ी नहीं चढ़े ना, पहाड़ी तो चढ़नी है रेस्पेक्ट करने के लिए, ऊपर चढ़ो और क्रॉस करके दूसरी पहाड़ी पे चढ़ो, राइट? तो ये ऑब्स्टिकल है। अब रूल ऑफ ओलंपिक्स या कोई भी आप देखेंगे तो ओलंपिक्स में अगर आप देखेंगे तो 100 मीटर रेस और 100 मीटर हर्डल रेस का विनर यही है कि जो सबसे फास्टेस्ट जाएगा। करेक्ट, अब जब आप चढ़ने लग जाएंगे तब आप ये सोचिए कि आप हर्डल के सामने जाएंगे दौड़ के, आप बेंड करके भी जा सकते हैं नीचे, फिर वापस खड़े हो सकते हैं, दूसरे हर्डल पे जाइए, वापस बेंड कीजिए, नीचे से चले जाइए हर्डल के, खड़े होके ऐसे 10 हर्डल क्रॉस कर लीजिए। आपको लगता है आप जीत पाएंगे रेस? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जब भी आप बेंड करोगे खड़े हो जाओगे, टाइम लग जाएगा, आप हार जाओगे। करेक्ट, दूसरा रनर ले लेते हैं, दूसरे हाँ। रेसर को ले लेते हैं, वो हर ऑब्स्टिकल को तोड़ते हुए निकल जाता है। आपको लगता है वो जीत जाएगा? ना कि इसलिए कि पेनल्टी पॉइंट है कि आपने हर्डल को टच किया, ब्रेक कर दिया, हाँ बट इसलिए क्योंकि जितनी बार आपके शिन्स उसको मीट करेंगे हर्डल को, आप लहूलुहान हो जाएंगे हाँ और पेन में आप स्लो डाउन हो जाएंगे, हाँ अगेन टाइम से आप हार जाएंगे। करेक्ट, सो द ओनली सोल्यूशन ये है कि आप जंप मारिए, ग्लाइड कर लीजिए एक ऑब्स्टिकल के ऊपर, लैंडिंग ऑन द टोज, गोइंग बैक अगेन, एंड एर्गोनॉमिकली ब्यूटिफुली आप निकल जाते हैं। नाउ दैट इज अब अ स्किल। उसका अब स्किल क्या होती है? कॉर्पोरेट में उसी स्किल को कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी कहते हैं। और जो जंप है विच मींस आप खुद को एलिवेट कर लेते हैं, आप नीचे नहीं चले जाते हैं। जब नीचे चले जाते हैं तो वो चापलूस बन जाते हैं, वो यसमैन बन जाते हैं बॉसेस के। अरे सर आप तो ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो, अरे सर मैं आपके लिए चाय ले आऊं, अरे सर मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, अरे सर मैं चाय बिस्किट ले आऊं। मतलब आप हर्डल के नीचे से जाना चाहते हैं। हर्डल के नीचे से जाना भाई वक्त लग जाएगा और वो खुद नहीं कहीं पहुंच पाए, आप कहां पहुंचोगे? तो डोंट डू दीज थिंग्स इन योर करियर। यू नो योर कैपेबिलिटी, यू कैन रीच समवेयर, एलिवेट योरसेल्फ। जब एक मौका आ रहा है, एक प्रेजेंटेशन आ रही है, टेक योर चांसेस, शो अप कि दैट यू कैन डू बेटर। समबडी इन द रूम विल नोटिस यू और वो आपको एक मौका दे देगा उस बॉस के ऊपर से जाने का। मगर विनम्र तरीके से कीजिए, ये ऑब्स्टिकल को कभी ना बोलिए कि भाई देख मैं तेरे ऊपर से चला गया। Corporate diplomacy is the art of the obstacle telling you, thank you for gliding over me so beautifully that I was undisturbed. Oh wow. Because if he gets disturbed or she gets disturbed, they will continue chasing you. Correct. So don't leave them. Don't Then let they them do it. Turn into snipers. They will turn into snipers. ठीक है? अगर आपने दूसरी पार्लेंस में आपको बताऊं, वो बोलते हैं ना हर गली का एक कुत्ता होता है, तो वो एक दो गली को गार्ड कर लेता है, मगर आप अगर आगे चले जाएंगे वो कुत्ता आपके पीछे नहीं आता। Correct. अब आप इमेजिन करिए कैमल को, ठीक है, वो सड़क से चल रहा है, कुत्ते आते हैं भौंकने के लिए। अगर कैमल झुक जाएगा, अपनी गर्दन झुकेगा, तो कुत्ते उसके सर They पे will bite. झुकेंगे। हाँ. वो ऊपर देखता है हमेशा, वो घुटनों के ऊपर नहीं आ पाते हैं। और कैमल कुछ नहीं करता है, उनके पीछे कुछ भी नहीं करता है, वो अपना चलता रहता है। जैसे वो रेगिस्तान पहुंच जाता है, वो अपने स्ट्रेंथ एरिया में आ गया। कोई कुत्ता उसको फॉलो नहीं कर सकता रेत में, और रेत में वो अकेला चलता है। और रेत में जाने के पहले वो सारा अपना प्रोविजन स्टोर कर लेता है अपने हाथ में, और अगले स्टॉप तक पहुंच जाता है जहां पे ओएसिस है। Now I have a question here. Sorry to break the flow. ये जो पूरा पीरियड था जिसमें वो डॉग्स फॉलो कर रहे हैं उसको, इस टाइम पे 99.9% लोगों को मालूम नहीं है हाउ टू डील विद इट। क्योंकि लोग क्या करते हैं,
तो वो देखते हैं। क्या ट्रिक है? भी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बहुत सिंपल है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि कैमल क्या करता है। हम्म कैमल ये करता है कि वो उन पे ध्यान नहीं देता, वो अपने पैसेज पे चला जाता है और वो अपने वीकनेस एरिया, क्योंकि उस गली का कुत्ता बड़ा स्ट्रांग है, वो उधर उससे भिड़ता नहीं है, वो उसको अगर उसको फॉलो करना है वो उसको बोलता है चल मेरे पीछे आ जा ना, बिकॉज तुझे इतना इंटरेस्ट है मेरे में, तू आ जा, और वो रेत में उसको ले जाता है जहां वो सबसे स्ट्रांग है, और वो कुत्ता फॉलो नहीं कर पाएगा उसको, एंड नॉन वायलेंट तरीके में वो पहुंच गया। काफी लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि पत्थर उठाते हैं, घूमते हैं, मारने के लिए जाते हैं। अरे भाई बीच में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो तो वहीं रहेगा। और खासियत ये है कि वो एक दो गली के अलावा दूसरा कुत्ता अगले वाली गली में बैठा हुआ है, एंड आई डोंट मीन इट बाय डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स एनी कॉर्पोरेट्स, इट्स जस्ट एन एनालॉजी, करेक्ट right? I don't mean that anybody is a dog, they are all excellent human beings in their own right, and you know everybody is brilliant, but we are understanding but it's an analogy, yes, and hence I'm taking the liberty, apologies to everybody if they really feel offended with it, that's not the purpose. no, but समझ में भी ऐसे ही आएगा, right? तो जैसे ही आप वहां पहुंचे, आपने समय बचा दिया, बिकॉज आप पीछे नहीं घूमे, आपने पत्थर नहीं उठाया, आपने मारा नहीं। how do you decode this mindset? ये सिंपल माइंडसेट होता है कि भाई नॉट एवरीथिंग नीड्स योर अटेंशन। अब आपका केले का छिलका वहां पड़ा हुआ है, आपको जबरदस्ती जाके फिसलना नहीं है वहां पे, आप साइड स्टेप कर दीजिए ना, आपके पास इंटेलिजेंस है, डॉज करोगे यू मीन? डॉज सी माउंटेन पे क्या है, मैं अगेन माउंटेन और उसके बीच में लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं इसको रिफ्रेज करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एज यू सेड, ये पैच में कैमल हैज टू मूव एंड देन देयर आर डॉग्स बार्किंग, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, लेट्स से। अब वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड के साथ खेलते हैं, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल आपको डिस्टर्ब करेगा। किसी ने आपको एक गंदी सी ईमेल लिख ली, हाँ, स्टिंकर आया, ईमेल लिखी, ट्रबल कर रहे हैं कोई लोग। अब ये सोचिए कि अब आपको क्या मिलेगा उसको एक तड़का वापस जवाब देने के लिए, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि भैया यू कांट मेस विद मी, करेक्ट, राइट? So take a step back, think coolly, is this really worth it, right? Is this helping me in becoming a CEO by engaging with this fellow? Correct, right? 99% of the time it is not worth it, 99% of the time. How is one supposed to react? You're not supposed to react, respond, you're not supposed to react, you're not supposed to respond. Okay. Sometimes you just ignore and walk, and people when they get ignored, they feel equally more slapped than what you would do if you were to send the email back, because Agreed. you just made them invisible. Yeah, and people don't like being invisible because they want to provoke you. No, they want to become the Kazi of your lives, you know. It is a pig mentality that जब आप मड़ के अंदर पिग से भिड़ जाते हो, हाँ, तो पिग को मजा आता है, हाँ, उसको मजा आ रहा है, और क्यों आप उसके मजे के लिए आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो? खुद सोचिए, अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे वो सी such obstacles are not going to stop. मेरा थंब रूल पूनम जी हमेशा ये रहा है, don't respond for 24 hours, no matter what happens. ठीक है, the world is not coming to an end. yeah. तो पहले वो उबाल आता है, ठंडा होता है, फिर आप अपने लॉन्ग रेंज थिंकिंग में जा रहे हो कि मैं उतर जा रहा हूं, इसके साथ भिड़ के मेरे और 24 घंटे खराब हो जाएंगे, तो छोड़ो यार, राइट? कर्मा विल कम बैक, and you are in a better, stronger position when you are much ahead. And then when you become his boss, you can settle the scores if you want to. I don't, because it's not worth it. Why would I revisit back in time कि अरे भाई जब मैं मैनेजर था तब तूने मुझे ये किया था? अरे I am climbing a next mountain. I know. It is not even worth it. Correct. Right? तो उनको अपने ही उसमें रहने दो, उसीलिए तो उनको ऑब्स्टिकल बोला गया है, और ऑब्स्टिकल उसीलिए बोला गया है क्योंकि वो एक ही जगह रहने वाले हैं, Correct. वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो उनके ऊपर रहम करो यार, उनसे बुरा मत मानो, वो उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो अपने नेचर के हिसाब से कर रहे हैं। करेक्ट, तो आप तो आगे निकलिए ना, आपका नेचर तो वो नहीं है ना, क्योंकि जैसे आप पत्थर मारेंगे तो वो पत्थर कलेक्ट करते करते आप भी पत्थर बन जाओगे, फिर आप भी वहीं पे बैठे रहो, पिंग पोंग करते रहो, अरे वो थोड़ा आपका डेफिनेशन ऑफ लाइफ, रंग चढ़ जाएगा बेसिकली। बिल्कुल, वी आर ट्राइंग टू से। तो जब आप कैमल बन गए, थोड़ी देर तक भागने रहेगा, कोई आगे नहीं आएगा, और सैंड दस्ती है, सब कुछ चलता है, और कैमल नोज हिज फुटिंग in the desert, and the corporate is almost like a desert also as compared to a mountain, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, similar analogies हैं, बीच में मिराज दिखता है, कैमल को नहीं दिखता है, इंसान को दिखता है। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपको हमारा कंटेंट और कॉन्वर्सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। What are corporate mirages? Interesting. कभी That's दिख your जाता next है, book maybe. अरे वो ऑफर आ गई, हाँ, बहुत ब्रिलियंट है, एक छोटी सी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा टाइटल दे रही है मुझे, बहुत 2 जंप्स दे रही है, 30-40%, मगर स्टेबल नहीं है भाई, वहां जाके पता चल जाता है कि वो गायब हो गई, 1 साल में बंद हो गई,
बंद हो गई, तब क्या करोगे? आप गलत पते पे चले गए, आप मिराज में कैरी हो गए। मगर अगर आप कैमल की तरह सोचोगे कि भाई मैंने अपना सामान पैक कर रखा है, मुझे रियल माउंटेन पे यू हैव टू ट्रस्ट योर सेंसेस, नॉट जस्ट वन सेंस। वन सेंस में आपको मिराज दिखता है आई से, मगर आपको वो वाटर की स्मेल नहीं आती है। करेक्ट। और वो वाटर की स्मेल है कैमल की। वो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो नहीं दिखता है, वो फील नहीं होता है। वो एनवायरमेंटल स्टडी, जो रूल पहाड़ी के हैं वही रूल डेजर्ट के हैं, सर्वाइवल के। You have to keep all your senses around you when you climb a mountain or when you are in the elements like a desert. Very interesting. Let's understand these 5 senses or whatever, how many हर एक senses, however senses. कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, Corporate के senses क्या हुआ है? कॉर्पोरेट के सेंसेस ये सारे हैं आपके अराउंड, कि भाई कहीं पे इंडस्ट्री में कोई शिफ्ट हो गया, एआई आ रहा है, आपकी सेंस होनी चाहिए ना कि भैया सिर्फ अपनी जॉब के बारे में ना सोचो, अपनी जॉब फंक्शन, अगर आप सेल्स में हैं सिर्फ सेल्स ना सोचिए, अपनी कंपनी में और भी जो डिपार्टमेंट है वो सारे सोचिए वहां क्या चल रहा है। अगर मैं टेलीविजन में था तो अपलिंक कैसे होता है, डाउनलिंक कैसे होता है, टेक्नोलॉजी सीखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सीखिए, फाइनेंस सीखिए, एचआर सीखिए, लीगल सीखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें सीखिए। उसके बाद वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है उसके बारे में सीखिए, वो इंडस्ट्री सनराइज में है, सनसेट में है, चैलेंजेस क्या है उसके बारे में चौकन्ने रहिए। करेक्ट। सिविक सोसाइटी में उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप न्यूज में हैं कि क्या लोग शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल की तरफ, क्या वो ब्रॉडकास्ट में है, क्या वो पब्लिशिंग में है, कौन आपको बताएगा? चौकन्ने रहिए। दारू पी रहे हैं तो आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है, वो एक और हमेशा question है नेटवर्किंग मेरे में पास। नहीं होगा, क्योंकि Yeah. आप नेटवर्किंग में कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं। करेक्ट। ना कीजिए। नेटवर्किंग अगर कर रहे हैं तो लोगों से सीखिए, अच्छी बात है नेटवर्क करना, मगर सीखिए लोगों से कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, फिर देश में क्या चल रहा है, फिर विदेश में क्या चल रहा है। क्योंकि आप इस वक्त उसी धरती पे हैं जहां कोई ब्राइटेस्ट लोग एंथ्रोपिक में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एनवीडी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप चिल मार रहे हैं, और वो रातों रात लगे हुए हैं। वो भी तो इसी धरती माता पे पैदा हुए हैं, आप भी जिस धरती माता पे पैदा हुए हैं, तो उनके कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए हैं जो आपके नहीं लगे हुए हैं। हाँ, उनकी सैलरी जरूर होगी ज्यादा, मगर आपकी भी तो हो सकती है। आपने क्यों डिफाइन कर लिया? तो जो ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं कभी कभी वो बहुत गलत हो जाती हैं। करेक्ट। क्योंकि थैंक गॉड मैंने ज्यादा अंग्रेजी में पढ़ा नहीं था, मैंने ये कभी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी नहीं थी, मैंने कोई तब इंटरनेट नहीं था, अदरवाइज मैं पढ़ लेता कि भाई मैकेंजी ने बोला है कि एवरेज एज ऑफ ए सीईओ इज 45 to 47। That would और play मैंने with your मैंने खुद को फेस कर लिया होता है, पेश कर लिया होता कि भाई मैं 35 में क्यों रगड़ रहा हूं भाई, 45 में ही तो बनना है। थैंक गॉड मैंने नहीं पढ़ा और मैं चढ़ता गया और 35-36 में बन भी गया, राइट। Correct. तो देयर इज ऑलवेज द आउटलायर, और आउटलायर आप तैयार होके नहीं जाते कि मुझे आउटलायर बनना है। यू नेवर डू इट विद दैट, Correct. यू जस्ट लव व्हाट यू आर डूइंग, राइट। एक छोटी रेफरेंस दूंगा फॉर ऑल द व्यूअर्स हियर। आप ही के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे हैं 2 movies which have really inspired me in my life, which really make a difference. One is known as The Peaceful Warrior, यूट्यूब में फ्री है। I will watch. एक रोमन रिंग्स जिम्नास्ट है जो अपनी हड्डियां टूट जाती हैं उसकी टांगों की ओलंपिक्स के क्वालिफायर्स में, और ओलंपिक नहीं जीत पाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सब छोड़ देता है। फिर उसको एक कैरेक्टर मिल जाता है जो उसको एक पेट्रोल पंप पे मिल जाता है, और वो उसको बोलता है मैं तेरा सोल्यूशन कर दूंगा, तू चल मेरे साथ। और वो उसको काफी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहाड़ी पे बोलता है अरे ऊपर सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ बोलेगा भाई मैं टूटी हुई टांग लेके चढ़ रहा हूँ, बोल रहे नहीं यहाँ। जब वो पहाड़ी पे चढ़ जाता है तो वो उसको बोलता है अब कहाँ है सोल्यूशन, तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मेरे को यहाँ तक चढ़ाया, तो कहाँ है ये? बोलता है वो जो पत्थर है वही तेरा सोल्यूशन है। वो बोलता है यार तू पागल है क्या, पत्थर में क्या सोल्यूशन? वो पत्थर उठा के फेंक देता है, बोलता है तूने मेरे साथ धोखा किया, ये किया, तूने मुझे बताया नहीं क्या सोल्यूशन है। वो बोलता है तुझे अभी भी समझ नहीं आई, हम इतनी ब्यूटीफुल पहाड़ी चढ़े, तूने एक भी बार अपनी जर्नी को नहीं देखा, तू डेस्टिनेशन पे इतना फोकस था, और अब जो जब डेस्टिनेशन दिख गई कि कुछ नहीं है, तेरा डिसइल्यूजनमेंट हो गया। अब मैं तुझे सवाल पूछता हूं, तू जब 4 साल का था और तूने रोमन रिंग्स करना शुरू किया था, तूने क्या इसलिए किया था कि तुझे ओलंपिक गोल्ड मिलेगा? करेक्ट। सच जवाब दे। तो बोलता है नहीं। तो बोलता है क्यों किया था? तो बोलता है मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एक पंछी हूं, मैं एक बर्ड हूं, मैं फ्लाई कर रहा हूं, वो मैं रिंग्स पकड़ के मुझे वो लगता था कि मैं उड़ान भर रहा हूं। फॉर द लव ऑफ दैट बर्ड एंड द फ्लाइट यू डिसाइडेड टू रोमन रिंग्स। कब ये पॉइजन हो गया कि भाई एक ह्यूमन मैन मेड अवार्ड जिसे ओलंपिक्स कहा जाता है, उससे तूने अपनी डेस्टिनी को टाई कर लिया, और जब वो नहीं मिली और तू दुखी हो गया,
Wow. तू इसलिए चढ़ा था क्योंकि तुझे मोहब्बत थी उस चीज से, तो अपनी मोहब्बत को वापस खोज और रोमन रिंग्स पे चढ़ जा और भूल जा कि तुझे ओलंपिक्स करना है, और फिर देख क्या होता है। और वो करता है, और वो क्या होता है वो आप उसके अंदर देखिए। Oh wow. राइट? Beautiful story. यही मैं काफी लोगों को बोलता हूं कि भाई एंड ऑब्जेक्टिव पे फोकस ना रहिए। गीता का भी यही सार है, एवरीथिंग इज इन योर एफर्ट, इज इन योर हैंड, इज योर एफर्ट। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल क्या है? यहां नेक्स्ट समिट नहीं लिखा है, नेक्स्ट माउंटेन लिखा है। सिर्फ क्लाइंबिंग करो। समिट पे चढ़ के सेल्फी लेने के लिए नहीं होता है। समिट हम्बल्स यू। समिट में हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम है, आप ज्यादा बोलोगे तो एनर्जी एक्सपेंड होती है। एज ए सीईओ बोलना कम करो। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप किताब बोल पॉडकास्ट में हैं, आप बिल्कुल। आपको बोलना है। Otherwise, योर धर्म इज टू आपने स्पीक। सोशल मीडिया में मैंने कभी कुछ नहीं बोला है, और पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ सोशल मीडिया कर रहा हूं क्योंकि अब रोल चेंज हो चुका है। राइट? तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड। राइट? द रूल्स ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, जो आपके आगे का बंदा है उसको रास्ता जरूर ना पता हो, मगर वो आपके आगे है, रेस्पेक्ट कीजिए। ही मे नॉट नो द वे, बट डोंट ओवरस्टेप। एवरीबडी वॉक्स इन ए सिंगल फाइल। जो जहां पे पाँव खाली कर रहा है, उस पाँव में, उस जगह में अपना पाँव रखिए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है लूज रॉक पे आ जाए और सारे गिर जाएंगे। आई हैव अ क्वेश्चन हियर। कभी ऐसी भी चीजें होंगी, मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज आपको बताऊंगा। आप एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं, रोप से टाइड होते हैं लोग, एक जना खिसक जाता है, पहाड़ी से गिरने लग जाता है, आप उसको हाथ देने लग जाते हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार कीजिए, मगर वो जो डेड वेट होता है ना, ग्रेविटी से पुल डाउन होता है। एज अ बॉस आपको कॉल लेनी होती है रोप को कट करने के लिए, क्योंकि बाकी 99 लोग जिंदा रहेंगे, वो एक को आपको काटना पड़ेगा। और ये वो चॉइस होती है व्हेन यू हैव टू लेट समबडी गो। हार्ड होती है, डिफाइनिंग होती है करियर में, मगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और आप 1 बार ट्राई कर सकते हैं, 2 बार ट्राई कर सकते हैं, 3 बार ट्राई कर सकते हैं, मगर कभी वो होता है कि वो बंदा हॉरिजॉन्टल ट्रैवलर है, चलना ही नहीं चाहते हैं, या बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं। आप 1 बार 2 बार अगर चेंज कर लेंगे, एक्सेप्टेबल। यू हैव टू टेक दोज कॉल्स एज अ लीडर। एंड ये ब्रूटैलिटी है, ये कोई फील गुड नहीं है। किताब में भी यही लिखा हुआ है। ये फ्लफी नहीं है, ये मेरे को ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है। आई मे बी वेरी वेल हेटेड फॉर इट, बट दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज लाइफ। Correct. This brings me to a very important question. When in your journey you became a leader, you thought I have become a leader because now I'm responsible for people. When did that happen? जिस दिन मेरा पहले एम्प्लॉय मेरे नीचे आ गए, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन जस्ट माई लाइफ। और वो था 2001 में, जब मैं स्टार टीवी ज्वाइन किया था। और विद इन 6 months मुझे अपने एक टीममेट को लेट गो करना पड़ा। और मेरे पास तब 2 ही टीममेट थे, उसमें से एक को लेट गो करना पड़ा। और काफी साल बाद वो मुझे मिला, बहुत सक्सेसफुल है आज अपने करियर में, और थैंक यू बोला। और मैंने भी बड़ी विनम्रता से उसको ही बोला कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मगर होगा नहीं। मैं उस बस में जा रहा हूं जो 200 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, और तू उसमें स्पीड में जा रहा है जो 30 किलोमीटर पे जा रहा है। होगा नहीं। तू दूसरी में चढ़ जा जो 30-40 किलोमीटर पे चल रही है, यहां पे जर्नी आगे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो बेटर फॉर यू टू लेट गो and take another pace that you are more comfortable with. You'll be more successful there, not with me. And he actually thanked me, and I'm so grateful to him. He knows who he is. I'm not going to name him, Please. but I'm very thankful to him. Yeah. He allowed me, not the regrets, because he didn't send me messages after messages, तूने मेरे लिए ये किया क्या किया. He took it gracefully, and he converted that fuel into his success. Even if it was against me, it's okay. But that led him to success. And he has a very successful corporate career right now. Very important question here, stemming from this fact. Most of the people do not understand what is their pace. In simple words, we say, in crude words, we say you are a misfit. Or in simple words,
if I am on this side of the table, then I would think that I also want to grow. I want double salary, triple salary. How is it different from what the company wants? So how does one understand this math? सिंपल होता है. आप कितनी बार, आप जब कोई भी ज्वाइन करता है नौकरी, जब करियर स्टार्ट करता है, क्या ये फेस करता है कि भाई मुझे कितनी दूर कब तक पहुंचना है? No. नहीं होता है. एक ही क्राइटेरिया होता है, भाई मेरे को इतने पैसे कमाने हैं. Correct. हो सकता है वो भी पता नहीं होता कि कितने कमा सकते हैं. Simple है. benchmark. ठीक है. तो जब इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो गोल्स नहीं होते हैं. आप गोल्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पता नहीं है कि गोल्स अचीवेबल हैं या नहीं है. राइट? क्योंकि आपने कभी पुल बैक करके कभी प्लान ही नहीं किया. मगर जब आप पहाड़ी चढ़ते हैं, आप पहाड़ी कभी ऐसे नहीं चल देते हैं, चल यार आज लोखंड वाला में अंधेरी में बैठे हैं, चल पहाड़ी चढ़ लेते हैं. Correct. क्योंकि पहाड़ी के लिए आपको टिकट कटाना पड़ता है, जाना पड़ता है उत्तराखंड या कश्मीर या हिमाचल, प्लान करना पड़ता है, गियर खरीदना पड़ता है, आप स्टडी करते हैं माउंटेन को कि कौन सा वेदर अच्छा है नहीं है, कौन सा रॉक फेस बेटर है, कहां लोग कम मरे हैं और कहां आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उस रॉक फेस से चढ़ते हैं. और फिर आपको पता है कि कितना टाइम है आपके पास, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहां तक आप चोटी पे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे और कब तक वापस आएंगे और कब लोखंड वाला वापस आएंगे. आप ये करियर में नहीं करते हैं. आप चढ़ जाते हैं पहाड़ी पे और चढ़ते चढ़ते फिर सोचते हैं यार ये कहां जा रहा है. अरे आपने स्टडी नहीं किया, ना वो इंडस्ट्री स्टडी किया, ना वो करियर स्टडी किया, ना आपने उन लोगों से सीखा जिनने गलतियां की हैं पहले उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में, या लोग छोड़ के गए हैं या ऑलरेडी हैं. आपने कोई रिसर्च नहीं की, आप बस चढ़ गए. और फिर आपने पेस भी नहीं किया कि व्हेन डू आई नो दैट आई एम स्लो. यू विल नो व्हेन यू आर स्लो, because when your goals of let's say getting 10 levels and you are giving yourself 30 years to go in 10 levels means that every level you have to be at 3 years. Yeah. Assumption. Roughly assumption. Yeah. Or if you want to be in 20 then every 2 years. अगर आपका 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप स्लो डाउन हो रहे हो. प्रमोशन, इंक्रीमेंट नहीं, प्रमोशन. तो आपको कोई बैरोमीटर नहीं है. आपके दोस्त नहीं आपको बताएंगे क्योंकि वो आपके दुख में भी आपके साथ दारू पी रहे हैं, आपके सुख में भी आपके साथ दारू पी रहे हैं. वो आपको कभी नहीं बताएंगे. पर वो तो इंडिफरेंट है आपके There is a thing प्रॉब्लम से. called introspection. आप अपने साथ कितनी बार बात करते हैं? मैं अपने साथ बहुत ब्रूटली बात करता था. मैं यारी रोड में रहता था, मैं चल के अपने को थप्पड़ मारता था. Really? रिप्ले करता था कि पिछले हफ्ते में क्या गलतियां की मैंने, क्यों मैंने इस मीटिंग में ऐसा बोला. एक एग्जांपल से ऐसी बताइए. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. कोई भी एक एग्जांपल. कोई बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपने कभी कोई हार्शली चीज बोल दी, या आपको आपका इंटेंट सही था मगर वो सही तरीके से निकला नहीं, कन्वे नहीं हुआ, और किसी ने आपको ऑफेंस ले लिया कि भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया. आपकी कोई इंटेंट नहीं थी. तो फिर जब आप उसको रिप्ले करेंगे दिमाग में, आप खुद की करेक्शन तो कर ही सकते हैं ना, मगर वो करेक्शन तो तभी करेंगे ना जब आप रिव्यू करेंगे आपके हफ्ते को. करेक्ट. अब मुझे बताइए, बॉम्बे की भाग दौड़ में कितने लोग सोचते हैं कि सैटरडे को जरा बैठ के 1 घंटा रिव्यू कर लूं कि हफ्ते में मैंने क्या किया, इस नजरिए से कि ना अपनी सक्सेसेस देखूं, अपने फेलियर्स को कितनी बार आप ऑडिट करते हैं. आप भूलना चाहते हैं उनको, आप दारू पी के दोस्तों से मिलके उसको नंब करना चाहते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी गलती है. क्योंकि जितना आप फेलियर से सीखेंगे उतना सक्सेस से कभी नहीं सीखेंगे. ट्रू. तो फेलियर्स को ना एक वॉल बनाना चाहिए घर पे, जहां मेडल लगते हैं ना उसको तोड़ दीजिए. फेलियर्स की एक मेडल की एक लाइन बना दीजिए, और वो खुद आप दे सकते हैं, ना कि जो दूसरे आपको बोलेंगे. उस मीटिंग में क्या हुआ वो तो सब निकल गए, किसी को याद भी नहीं रहा, मगर आपको याद रहना चाहिए कि आपने गलती की, और उस गलती की आपको सजा मिलनी चाहिए. और वो सजा होती थी वो थप्पड़ जो मैं खुद को प्रोवर्बियली ने एक्चुअली थप्पड़ मारता था. रियली. आई एम वेरी सीरियस. एंड मैं खुद को याद दिलाता था, तेरा ऑब्जेक्टिव है वहां पहुंचना, क्योंकि तू नहीं चाहता है वापस उस ट्रेन पे अखबार बिछा के सोने के लिए. तू ये गलती कैसे कर सकता है? वो तो कर सकता है कि भैया वो बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं, वो कर सकता है, तू नहीं कर सकता. तो अपनी औकात में रह, और अगर गलती की है माफी मांग, और दोबारा मत कर, और चढ़ जा वापस. और ऐसे गलतियां करते करते ही मैं आगे निकला हूं, क्योंकि ईगो नहीं है. हर एक से सीखने को तैयार हूं, वॉचमैन से, सिक्योरिटी मैन से लेके सबसे.
यहां आप मेरी सीनियर हैं, आपने पॉडकास्टिंग की जर्नी बहुत ज्यादा अर्ली शुरू कर दी है, आपका लर्निंग और मैं तो शुरू भी नहीं किया हुआ है, मैंने जिंदगी और बिहाइंड द कैमरा की है, आपने तो इतने सारे साल कैमरा के आगे आए हुए, तो आई एम लर्निंग एंड आई वांट टू बी अ फॉरएवर लर्नर, आई वांट टू बी अ फॉरएवर क्लाइंबर, आई डोंट वांट टू बी अ समिट ड्वेलर. Wow. I think that should be the title of your next book. How not to be a summit dweller. बिकॉज देखिए मेरी बुक में एक छोटा सा अब आप लॉजिकली लोग हर एक सवाल पूछते हैं, Correct. आप भी पूछ सकते हैं भाई अब क्यों 53 में 16 साल के सीईओ बनने के बाद. वो मेरा आगे का क्वेश्चन. चलिए अभी और तो हम डिकोड वहीं पे आ करना. जाते हैं. अभी चलिए, और डिकोड आपके करना नेक्स्ट बाकी है. क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आपने कई बार ये कहा है कि रेजिलियंस जो होती है वो हमेशा हाइंडसाइट विजडम होती है, राइट? सो व्हाइल यू वर लिविंग थ्रू दोज इयर्स, व्हाट केप्ट यू गोइंग? आई थिंक आपने उसका एक रिफ्लेक्शन दिया है, मुझे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाइए. वन इज सेल्फ, हाँ, सर्वाइवल इज द वर्ड. आप सर्वाइव करना चाहते हो क्योंकि आप एक अनजान शहर में आए हो. शहर इतना वेलकमिंग नहीं है, शहर बहुत मुश्किल है, शहर बहुत ब्रूटल है. वो पीजी के धक्के खाना, वो 2-2, 3-3 हजार के लिए वो रेलवे ट्रेनों के धक्के खाना, वो सब कर चुका हूं मैं जिंदगी में. जब मैं मीडिया प्लानिंग करता था फलक्रम में, मेरे साथ वो लोग सेल्स लोग आते थे जो फैंसी गाड़ियों में होते थे और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे. मैंने अंधेरी में इंडियन ऑयल नगर के सामने अपनी वेडिंग के टाइम पे सेकंड थर्ड हैंड फर्नीचर खरीदा अपना घर सजाने के लिए. मेरे डिस्कवरी के दोस्तों ने 10,000 रुपए देके जमा करके मेरे लिए केन फर्नीचर का सेट खरीदा मैंने, फॉर यू टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, फॉर मी टू स्टार्ट माई लाइफ. तो वो जो ह्यूमिलिटी है, वो जो ग्राउंडिंग होती है ना, वो कभी भूलनी नहीं चाहिए. आज मैं 16 साल से सी हूं, मैं अभी भी 10 साल पुरानी इनोवा और 10 साल पुरानी ऑल्टिस चलाता हूं. आप कोई ट्रैपिंग्स नहीं देखेंगे, कोई फैंसी कार नहीं, कोई फैंसी लाइफस्टाइल नहीं, कोई कुछ नहीं. बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? फैंसी कार और लाइफस्टाइल कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत कुछ नहीं होता है. मेरा लाइफ का मिशन ये है कि मैं माउंटेन क्लाइंबिंग हूं और मैं अपने हैवरसैक में ये वजन नहीं डालना चाहता, क्योंकि इन चीजों का वजन होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इन चीजों का वजन होता है. वजन इसलिए होता है क्योंकि जिस दिन वो हट गई ना, हाँ, आप फिर इनके स्लेव बन के रह जाते हो, क्योंकि सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी. एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि भाई तू तो इतना बड़ा सीईओ, अरे देखो अब आ गया ना औकात पे, बड़ी गाड़ी बेचनी पड़ गई ना, क्योंकि बुरे दिन आ गए. मेरे ना तो अच्छे दिन ना तो बुरे दिन, मैं अच्छे दिनों में भी वैसे ही रहना चाहता हूँ, बुरे दिनों में भी वैसे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं जी रहा हूँ. मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उसलिए चल रहा हूँ. मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे फोटो ले और बोले देखो भाई यहाँ पे फ्लैग आ गया, यहाँ माउंटेन बन गया. नहीं, मेरी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी पे है, क्योंकि अगर एक भी कॉन्सेंट्रेशन हटी किसी भी फ्लैश कैमरा के होने से, होते ना जैसे वो बॉर्डर रोड्स के वो होते ना स्लोगन्स, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा काफी सड़कों पे लिखा होता है बॉर्डर एरिया के पीछे सब यही होता है. ठीक है, करियर में भी यही है, नजर हटी दुर्घटना घटी. पीछे मुड़ के देखूंगा, आगे से ट्रक आ रही हुई, पता नहीं चल जाएगा, करियर खत्म. इतने साल के बाद भी इनसिक्योर हूं इन चीजों को लेके कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसका सिक्योरिटी एक रात को सब खत्म हो गया. 12 कमरों का घर था, हमारा बड़ा घर था कश्मीर में, सबसे बेस्ट स्कूल टेंडर वेस्को स्कूल में पढ़ा हुआ था. रातों रात गैरेजेस में और टेंट्स में पड़ा. जब पिछले साल मिसाइल्स आए थे वॉर के दौरान, अगर किसी के घर के पास हो जाते, आपने कभी सोचा है बॉम्बे के घर में अगर आज रात को आपको निकलना पड़े और 30 साल तक वापस नहीं जा सकते, और कोई पैसे नहीं है क्योंकि कुछ हो गया, बैंक फ्रीज हो गए, तो कैसे जिएंगे? तब वो फैंसी गाड़ी क्या करेगी? ठीक है, तो जो सर्वाइवल के लिए जो जरूरी होती है वो होती है निम्बलनेस, और निम्बलनेस आपके हाथों, आपके बेसिक सेंसेस से आती है. आप वो फ्लीस का जैकेट बन के आप पहाड़ी पे, आपकी जर्नी आसान नहीं होती है, क्योंकि शर्पा ज्यादा आसानी से चढ़ पाता है पहाड़ी को, ना कि जो बॉम्बे से निकले या कोई फैंसी जगहों से आए हुए माउंटेनियर जो ट्रेनिंग एकेडमी से निकले होते हैं. शर्पा तो ऐसे ही हंसते खेलते चढ़ जाते हैं बगैर ऑक्सीजन के, और वो तो रोज चढ़ रहे हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि वो पहाड़ी को एक वैसे कोई मेडल के थ्रू से नहीं जा रहे हैं ना कि भाई मेरा बकेट लिस्ट है. उसका तो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका तो अर्निंग है, उसका तो पूजा कर रहा है वो उसकी, क्योंकि उसकी सारी कमाई उसी पहाड़ी से आ रही है, तो वो रिस्पेक्ट करता है उसको, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वर्क इज वर्शिप इसी को बोलते हैं. लोग समझते नहीं है.
और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, In the long run. क्योंकि वो आप फिर जैसे आप सर झुकाते हैं भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अगर आप सर झुका के चलेंगे अपने करियर के सामने, करियर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा, कोई चांस ही नहीं कि नहीं लेके जाएगा। मगर एटीट्यूड और ईगो लेके जाएंगे तो आपको डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगा माउंटेन। आप ये सोचिए, माउंटेन्स हजारों साल पहले भी थे, हजारों साल बाद भी होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिलेनियल हो, आप जेनजी हो, आप बूमर्स हो या कोई भी हो, रूल्स ऑफ द माउंटेन हैव नेवर चेंज्ड Correct. एंड ह्यूमन बींग्स हैव आल्सो नेवर चेंज्ड। आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, पहले भी सोते थे, अभी भी सोते हैं, आगे भी सोएंगे, राइट? आप खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, पहले कच्चा खाते थे, अब पक्का खाते हैं, फिर पॉलिश्ड रिफाइंड फूड खाते हैं, फिर वापस से वीगन खाते हैं, अवाकाडो खाते हैं, मतलब स्टाइल में चले जाते हैं, ऑर्गेनिक खाएंगे, जो भी आप कहेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, मिलेट्स पे वापस आएंगे, सब कुछ आएगा, सर्कल्स आएंगे, राइट? एवरी ह्यूमन बीइंग is born as a child, single, not three people unless it's triplets. Yeah. और सबकी जर्नी and you die alone. Mountaineering is a solo sport. There's nothing wrong in it. फिर आप बीमार हो जाते हैं, आप बच्चे होते हैं, आप गिरते हैं, घुटनों से चलते हैं, फिर सीखते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। क्या जेनजी अलग करता है? क्या मिलेनियल अलग करता है? क्या वो doesn't he suckle from, the mother's breast when he's small, or a bottle, the feeder? Or doesn't he digest his first thing? Or doesn't he walk the same way, the first steps? Doesn't he fall in love with the same way? Doesn't he fall out of love the same way? Doesn't he go into jobs the same way? Doesn't he drop out of jobs the same way? Doesn't he age? Doesn't he grow old? Doesn't he die? What has changed? People love giving them different terminologies, different thinkings, but the basics in life have never changed. True. The science of medicine can keep evolving, but the basics never change. Your heart hasn't changed functioning from thousands of years till now. Vestigial organs are still there. It takes a far longer time frame for things to change. We carry ourselves seriously, so the rules don't change. जो गवर्नमेंट में रूल्स होते थे वही आपके प्राइवेट में भी चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स के टाइम पे सिमिलर है। ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि तब ऑप्शंस नहीं थे, तो आप एक ही पहाड़ी पर चढ़ चढ़ के 50s में रिटायर हो जाते थे। करेक्ट। आपके बॉस उतने ही खड़ूस होते थे या अच्छे होते थे, आपके कुलीग्स भी उतने ही जलसी होते थी, उतने ही बिच्चे होते थे जैसे आज होते हैं, मगर तब आप उसके लिए ज्यादा रोना पीटना नहीं करते थे। आज क्योंकि ऑप्शन है, आप छोड़ देते हैं। आज आप किसी को ऑफर लेटर देते हैं तो वो ठुकरा देता है, क्योंकि उस पर दूसरी ऑप्शन है। तो आपका वर्क एथिक डिफरेंट हो जाता है, मगर पहाड़ी वही है, उसके चढ़ने के रूल वही है, उसका रिस्पेक्ट वही है, उस पे जो एवलांचेस आते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से आते हैं। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कब एवलांच आएगा, और अगर आप तैयार नहीं होंगे आपका करियर फिनिश। तो तैयारी जीत की क्या है? कभी कभार बड़े एवलांच आते हैं, तब एक बियर हाइबरनेशन हाइपोथेसिस है, या भालू, पोलर बियर्स, या ऐसे कभी जैसे पहाड़ियों पे जैसे जानवर होते हैं काफी, हाइबरनेशन में 6-6 महीने तक अपने बॉडी टेम्परेचर को लो करके बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी स्पेंड नहीं करनी होती है, बोलते नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को लो कर देते हैं ताकि बॉडी को गर्म करने में भी एनर्जी चली जाती है। दे आर ऑलमोस्ट डेड। देन जैसे ही विंटर खत्म हो जाता है, दे आर बैक इनटू लाइफ। समटाइम्स इन कॉर्पोरेट लाइफ जब इतने आंधी तूफान आते हैं, भाई बियर की तरफ हाइबरनेट कर लो, बैठे रहो, जिंदा रहो, मरो मत, छोड़ मत दो पहाड़ी को, बैठे रहो, पर तैयार रहो। जिस दिन मौसम बदलेगा सबसे पहले उठ के चढ़ना शुरू कर दो। इसकी दूसरी एनालॉजी आपको दूंगा, शायद इजियर समझ आए। चाहे आप उसको स्वैम्प बोले या चाहे उसको कभी आप बोले कि भाई एक व्हर्लविंड, जो व्हर्लपूल होता है। व्हर्लपूल में प्रिंसिपल क्या है, अगर उसको लड़ेंगे तो आपको नीचे नीचे खींचेगा, मगर व्हर्लपूल एक कोन की तरह होता है। जब नीचे आ जाते हैं व्हर्लपूल की पावर खत्म हो जाती है। अगर तब तक सांस रोके रहोगे और लड़ोगे नहीं व्हर्लपूल से, हो सकता है बच जाओगे। स्वैम्प में जब खिंच जाते हो, दलदल में ज्यादा हिलते हो, दलदल खींच लेती। माइक्रो मूवमेंट्स करोगे, हल्के 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 हल्के, ताकि थोड़ी थोड़ी आर्म फ्री हो जाए, थोड़ी थोड़ी लेग फ्री हो जाए, तब दलदल से निकल पाओगे। मगर काफी लोग इसको मिस्टेक कर लेते हैं, वो लड़ने लग जाते हैं और ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, जबकि आपको कम एनर्जी यूज करनी है उस टाइम पे।
शायद वर्लपूल में है, ये समझ में नहीं आता। यही कैसे मैं समझे वर्लपूल है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माय डे टू डे रेगुलर लाइफ? मैं आपको यही बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको सेम पेसिंग की बात, हाँ आप दलदल में फंस चुके हैं, मतलब आप 3 साल से 4 साल से 5 साल से एक ही टाइटल में हैं, हाँ तो समझ जाइए ना आप दलदल में हैं। करेक्ट। और उन लोगों से जिनसे लड़ रहे हैं, बंद कीजिए लड़ना, बाहर निकलिए, हल्के हल्के माइक्रो मूवमेंट, क्योंकि आपको आगे जाना है, आपको उस गली के कुत्तों से भिड़ना नहीं है। So what is the strategy at that time? Invest time in learning more, building your Strategy is learning time and learning more. skill. Yeah, Strategy also is, first, how will you do that? First step is to introspect. correct. Recognition of the problem is the first step in solving a problem. How will you recognize a problem? You will recognize a problem only by having a conversation with yourself. True. अपने साथ तो conversation कीजिए। Correct. कितने लोग करते हैं? साइलेंस से घबराते हैं लोग, अपने साथ बैठने में घबराते हैं, क्योंकि वो डीमंस निकल के आते हैं कि भाई तू क्या कर रहा था, ये क्या कर दिया, कैसे बोल दिया, क्या कहा। आप नहीं बैठ पाते हैं उसके अंदर। आप सोशल वैलिडेशन सीख करते हैं, करेंसी लाइक्स की, सोशल मीडिया की, बिकॉज यू वांट टू बी इन अ फील गुड, कि लोग देखो मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं, देखो कितने व्यूज आ गए, देखो कितने लाइक्स आ गए। मैं सोशल मीडिया तक कितने साल तक दूर रहा, क्योंकि मुझे वैलिडेशन बाहर वालों से नहीं चाहिए, मुझे वैलिडेशन अपने आप से चाहिए। Am I happy with what I did last week? Correct. And I will not measure it by how many LinkedIn shares and how many followers and how many likes or how much impressions I got delivered. For the last 4 months, I will confess, I do look at those metrics, and I want to get away from there because it's toxic. You think so? It's toxic because then I'm doing things for an objective, and I don't want to do it for an objective. I want to do it for the effort, for the climb. I think it's a very beautiful thought that if your complete focus is on the climb, on the journey, and retrospection or looking at your own self, sit down with your own self, let's say weekly, and say that in the last week, I am happy with what I delivered or what I did. And be critical with yourself. Yeah. Be critical. ये नहीं कि भाई तू चिल मार यार, all is okay. नहीं, लुक एट इट ना। और कौन बोलेगा आपको क्रिटिकल? कंपनी इवैल्यूएट करती है आपको, अप्रेजल करती है साल के बाद में। करेक्ट। और उनको क्या फर्क पड़ रहा है आप ऊपर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, बेल कर्व के अंदर मारे जाओगे। ठीक है, यू सेड इट। ठीक है, किसी बॉस को कुछ बोलोगे नहीं तो आपको एनीवे वो डाल देगा नीचे, यू नो, अंडर एक्सपेक्टेशन में। अरे खुद तो आप हर हफ्ते आपको एनालाइज अप्रेज कर ही सकते हो ना। अगर आप 52 वीक्स में अप्रेजल में पास हो गए ना, तो भाड़ में गया जो आपको एचआर या आपके बॉस ने अप्रेज किया। मतलब बॉस खराब है, एचआर खराब है, छोड़ दो, किसी और जगह पे जाओ, एज लॉन्ग एज यू आर ब्रूटली करेक्ट विद योरसेल्फ एंड डोंट बी डिल्यूजनल। ये नहीं कि भैया फील गुड, नहीं, इतना जिसे बोलते हैं ना मैनिफेस्ट, कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, वो अच्छा भी होता है, वो खराब भी होता है। क्योंकि खराब इसलिए होता है क्योंकि आप डिल्यूजनल में आ जाते हो कि भाई मैं ही पूरा सही हूं, दुनिया गलत है। करेक्ट। नहीं भाई, क्रिटिकल एग्जामिनेशन मीन्स लुक वेयर द हेल आर यू गोइंग रॉन्ग, not in your parameters, also the worldly parameters. What are the 2-3 red flags to know that I am going wrong? Because you are absolutely right. It is a delusional state. And the state of mind is so delusional that there is it's all camouflaged. And there are people telling you that you are the best. So simple क्या होता है? Simple चीज ये होती है, the response to each of these things is how much time, कितना समय आप proactive चीजों में दे रहे हैं, कितना समय आप रिएक्टिव चीजों में दे रहे हैं। At work. ठीक है, रिएक्टिव मीन्स देयर इज ऑलवेज अ क्राइसिस, मगर अ क्राइसिस विल होल्ड यू बैक वहीं पे, एंड देन यू विल बिकम अ क्राइसिस सॉल्विंग एक्सपर्ट, और आप वहीं पे रहेंगे करियर में, बिकॉज यू आर टू गुड एट सॉल्विंग क्राइसिस, व्हिच मीन्स यू आर परहैप्स नॉट सो गुड एट लीडिंग, देन यू विल नेवर ग्रो। Oh. राइट, बिकॉज हु विल फाइंड अ रिप्लेसमेंट, बिकॉज नया बकरा चाहिए। But crisis solvers तो ऊपर जाते हैं फास्ट। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। If you are an excellent firefighter, it is in the interest of anybody at the top to make you sure that you are always firefighting. Because where will they find one more idiot who will go into the fires willingly and douse them? Well said. Right? And who is also not looking at great promotions or great anything else. Or not asking for it. You are a perfect person because you get a high out of solving fires. Yeah. Because that's what you made your life purpose. You are not a vertical traveler, my friend. You love the thrill. You love the validation. Oh my God, Avinash,
तूने ही सॉल्व कर लिया, तेरे बगैर तो कोई नहीं सॉल्व कर सकता था। अरे भाई बेवकूफ बना रहा है तुझे, Most difficult client can क्योंकि तू you वहीं can पे only बैठा रहेगा और वो he knows or she knows how to make you work Yeah. and you're forever busy and your friends, wow, let's drink to that, let's this thing, everybody applaud, you get an award at the end of the year. Arey, who is the award? What is the award for? Mountaineers, when they are climbing in the mountain, don't get any awards. Yeah. Nobody is sitting at the summit waiting for them to applaud. Correct. Nobody. You're solo. And the vision is so overwhelming that most people cry on top of the mountains. Most people cry. Not out of achievement. Just out of the sheer कि मैं Sheer. कुछ नहीं हूं. Yeah. Look कितनी बड़ी कायनात है. I'm a tiny speck and I survived. at. So you're filled with gratitude. Correct. You're not filled with, oh, I did it. Now let's go back to the same Avinash who is a firefighter and who is in this mirage that he's I the wasn't. most important. No, not I you, wasn't. not you. The same example, Right. wala Avinash. Because right now you are the hero of the show, right? So every name is you. What will you tell this Avinash? Ki firefighter se, now you have understood, how would you become and climb? How would you become a leader? How would you get onto the leadership position? What was the fire about? The fire on the mountain, proverbially coming Yeah. back to the mountain, was just a tricky jump that you had to do from one to another. बीच में एक पत्थर आ गया था, बड़ा सा बोल्डर, और आपका ट्रैक जो है उसके बिहाइंड है. हाँ. तो आपको डेफ्टली वो पहाड़ी, वो पत्थर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था. राइट? अब आपने सारी एनर्जी लगा के, क्योंकि तब आपके हाथ और पाँव दोनों चाहिए उस पहाड़ी को, उस पत्थर को ग्रिप करने के लिए, सो दैट एक एक इंच करके Get a push. आप उस पत्थर को क्रॉस करके वापस से ट्रैक पे आ गए. Correct. ठीक है, और आप बच गए, आपने कर लिया. ठीक है, अब दूसरा जना आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो आपने सीख लिया. अब आप उसको सिखा रहे हो कि भाई तू ऐसे 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 करके आ जा. ठीक है, तो ऐसे ही एक फायर आपने बेसिकली डाउज कर दी, क्योंकि आपने कर दिया. Correct. राइट? अब किसी ने जो पहाड़ी के आगे चला हुआ है, उसने देखा कि भाई आप बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं, कितना ब्यूटीफुली आपने इस पत्थर को क्रॉस कर लिया. तो अब वो आपको बोलता है तू भाई वहीं रुक जा, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है. हाँ, तो उनको सबको क्रॉस करवाते रहे, क्रॉस करवाते क्रॉस करवाते. अरे भाई मेरा मिशन हो गया ना, मैंने तो सीख लिया पत्थर कैसे क्रॉस करना है. चलो एक जने दो जने को मैंने करवा दिया. उसके बाद अगर बोलेगा नहीं सर मेरे लिए ये नहीं है, मैंने पहाड़ी पे आगे जाना है कि आपके साथ जाना है, यहाँ पे कोई और अपना अपना पहाड़ी सबको क्रॉस करना है. यू कैन नॉट टीच पीपल हाउ टू क्लाइंब अ माउंटेन. That They is have their to own learn on their journey. own. Yeah. And if they can't make it, that is what the mountain has determined, that you should. Mount K2 is known as the mountain because it has the highest number of peaks, Correct. more than that of Mount Everest. Right? Now, mountain doesn't feel bad about. People make some things, or sometimes the weather is inclement. There is nothing wrong about it. It's the worst thing that can happen to anybody. But mountains are brutal. And it's not that sometimes the mountaineer makes mistakes. Sometimes it's just not meant to be. They just weren't. Something happened, some lapse of judgment, and things went wrong. And sometimes it's just destiny. Things happen. Understand that. Yeah. राइट Yeah. तो हो जाता है. राइट? तो वो डिटर्मिनेशन आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फिर वैलिडेशन उसमें आ रही है कि सारे चेयर लीडर्स बन गए आपके. जिस दिन आपके पास चेयर लीडर्स आ गए, जिस दिन आपके पास एको चैम्बर आ गया. सीईओज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एको चैम्बर आना. अरे सर तुसी ग्रेट हो, अरे सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल दिया 100 लोग लाइक करेंगे, Yeah. डीएम्स आएंगे, अरे कितने हैंडसम लग रहे हो, क्या बोला आपने, वाह वाह. अरे वही चीज अगर मैं 20 साल पहले से बोल रहा हूँ, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है. आज सडनली सक्सेसफुल हो गया तो वो मतलब इट्स गोल्ड. राइट? तो यू हैव टू नो व्हाट आर ट्रैप्स. These are traps. These are all traps. They are meant to keep you at that same level. They are the mirage. Look beyond the mirage. Keep your senses alert. This is not what you climbed for. True. What is the loneliest part of leadership that nobody prepares you for? Loneliest part is the silence. Loneliest part जो लीडरशिप का होता है ना, एक साइलेंस होती है और आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो कुछ भी. आपका कैंटीन में खाना जाना बंद हो जाता है.
आप अपने केबिन में अकेले बैठ के, वो रात को आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हजारों लोगों की, जिनका करियर आपके डिसीजंस के ऊपर निर्भर करता है। वो वॉचमैन की, वो सिक्योरिटी वाले का, वो ड्राइवर का, वो सीओओ का, वो वीपीज का, वो मैनेजर्स का, असिस्टेंट मैनेजर्स का, वो रिपोर्टर्स का, वो फील्ड में जितने टेक्नीशियंस हैं, ओबी ड्राइवर्स, ओबी वैन ऑपरेटर्स, लाइव ऑपरेटर्स, वो सब कहीं ना कहीं आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट बहुत ज्यादा होता है और आप किसी से वो शेयर नहीं कर पाते। वो जो लोनलीनेस होती है, वो जो साइलेंस होती है, क्योंकि आपको आपके डिट्रैक्टर से हटना पड़ता है। डिट्रैक्टर्स मतलब आपके एको चैम्बर से हटना पड़ता है और वो साइलेंस में आपको वो आंसर खोजने पड़ते हैं जो शायद आपको आते भी नहीं है। यू डोंट नो ऑल द आंसर्स, ट्रू, and you carry the weight of those decisions. Sometimes you don't make all the decisions correct. Sometimes you make mistakes, and the consequences are felt deep down. That is the loneliest part. पहाड़ी के अंदर इसको बोलते हैं, एवरेस्ट में अगर आपने कभी स्टडी किया हो, हिलरी स्टेप्स जस्ट बिफोर द माउंटेन इज वेयर द मैक्सिमम हैपन। फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, लोग खड़े रहते हैं because people are still, and stillness means correct, on the mountain and in careers also. And not all movement is progress. एक ही जगह रह के हिलना उसको प्रोग्रेस नहीं बोलते। Moving purposefully in a direction where you wanted to go, a movement in that direction is known as progress. एक जगह रहोगे ना, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, उंगली काटनी पड़ेगी। और काफी लोग CXO चोक होल्ड में दे नेवर मेक द नेक्स्ट कट ऑफ बिकमिंग अ CEO। वो वहीं पे हिलरी स्टेप्स में मारे जाते हैं। बिकॉज हिलरी स्टेप्स का सबसे चीज क्या होता है, जैसे आपने वो फोटोज देखे होंगे, ट्रैफिक जैम हो जाता है माउंट एवरेस्ट पे, लाइन लगी है, वो हिलरी स्टेप्स हैं, क्योंकि एंड तक पहुंचने के लिए क्यू है। और कहीं वो CEO रोल खुलता नहीं है, जहां आपको फिर 2 साल वेट करना पड़ता है कि भैया वो हटेगा तब मैं CEO बनूंगा। नीचे तो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए 20 रास्ते हैं, ऊपर नैरो डाउन हो जाता है। जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक आप जाओगे नहीं। CMO की नौकरियां सिर्फ 1000 होंगी दुनिया में, एंट्री की लाखों होंगी। उसके ऊपर CEO के रोल शायद 500 होंगे, CEO को रोल शायद 100 होंगे। तो आपको वेट करना पड़ता है पूरे माउंटेन गियर में। और अगर आप वेट करके बैठे रहोगे इतने रफ एलिमेंट्स में, आप फ्रीज हो जाओगे। फ्रॉस्ट बाइट से उंगलियां कट जाएंगी, आप मर जाएंगे। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, कीप मूविंग। दैट टाइम दोज माइक्रो मोमेंट्स विल कीप यू अलाइव। थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, एक ही जगह ना बैठिए। और तब पर्पस ये है, क्योंकि आपका पर्पस, तब पर्पस की तरफ जा रहे हैं मगर आगे ट्रैफिक जैम, तो आपको बैठना पड़ेगा और मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि खून दौड़ेगा आपकी रगों में से। वो खून दौड़ेगा तो फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगा। और जब क्लियर हो जाएगा रास्ता, आप तब कदम बढ़ा के समिट पे जाएंगे। और जब आप समिट पे जाएंगे, आप समिट पे अपना तंबू लगाने के लिए ना जाइए। देयर इज अ प्रिंसिपल इन द बुक एंड जनरली विच इज क्लाइंब हाई स्लीप लो। एक माउंटेनियरिंग का प्रिंसिपल है, क्योंकि जब आप हाई पे जाते हैं ना, ऑक्सीजन और कम हो जाता है। वहां पे सोइए नहीं। जो भी पहाड़ी पे चढ़ता है ना माउंट एवरेस्ट पे, वो वहां रुकता नहीं है, तंबू नहीं लगाता। वो थोड़ा नीचे कैंप में आके सोते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन बेटर है। ऊपर हार्श है, मर जाओगे। कुछ मिनट के बगैर आप नहीं रह सकते वहां पे। CEO में भी अपने आप को इतना सीरियसली ना समझे कि हमेशा उतने कैरेक्टर में आइए। जब ऑफिस खत्म हो जाए, घर पे स्लीप लो, बी हम्बल। अपनी उसी गाड़ी में रहिए, ज्यादा देर एंजॉय करेंगे। हर रोज ऑफिस जाएंगे, पहाड़ी चढ़िए, कुछ घंटे बिताइए, वापस आइए। डोंट कैरी योरसेल्फ टू सीरियसली, अदरवाइज एंड देन समडे यू मेक ए डिसीजन कि अब मुझे अगली पहाड़ी पे जाना है। और वो मेरा था वो फेज ऑफ कंट्रोल डेमोलिशन। I want to come on that. But before that, I have a question. You say CEO's chair is not a trophy. It's not. Everybody, but that is the summit. It is not. That is not. That is what I'm trying to tell you. It's मैंने a आपको क्यों बोला? responsibility, you said. It's But a then, responsibility. what is the heaviest decision you have ever had to carry on yourself from your entire journey? Like, 16 years you Heaviest decision यही sat होता as है। a CEO. जब आप बैठते हो तो आप कहीं ना कहीं, चलिए आप एको चैम्बर नहीं कर लेंगे, चाहे आप कुछ नहीं कर लेंगे,
मगर I have also made that mistake. Why did I stay there for 16 years? I shouldn't have. 5 years, 7 years, 10 years is enough for me to do some things. I stayed far too long. But if the company is growing and there are visions, and That's not the reason I climbed. I climbed because I want to grow. but if the company is growing, That is you're also incidental. growing. It's incidental. No, I'm not growing because I'm on the same mountain. I'm at the same place, and then I'm doing managing kids, helping Help me them grow. understand. No, help me understand this. For anyone, sorry to get into nitty-gritties of this, but for anyone, the best role is I am in a growing organization. I am also growing. My salary is going up. My ESOPs are going up. पूनम, My आप ये company is सोचिए, मैं समझ रहा हूँ diversifying. आप कहाँ जा रही हैं, मगर मैं आपको ये 2 बोल रहा हूँ, कंपनियों से 10 कंपनियों का सीईओ में, उससे ऊपर क्या चाहिए? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप हिस्टोरिकली चले जाएंगे इंडिया में, हाँ तो एक स्टेजेस ऑफ लाइफ होते थे, जी. एक सक्सेस का होता था और फिर बाद में वनप्रस्थ चले जाते थे, लोग जंगलों में चले जाते थे, एंड दे यूज्ड टू डाई देयर, राइट? दे नेवर यूज्ड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, राइट? वानप्रस्थ ठीक है? छोड़ दिया सब. That is the toughest decision to do, to let go of this mirage that I am everybody or I am somebody. Let go. I'm just a fellow climber, and if I'm staying there long enough, then the next person is not able to enjoy the summit. हट जाओ यार, अगली पहाड़ी पे चढ़ सकते हो, चढ़ जाओ. मुझे बुक्स के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने खुद बैठ के कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, PR मशीनरी, मीडिया, व्हाटएवर XYZ दिन रात किए हैं. सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम किया है इन पिछले 4 महीनों में, तब जाके बेस्ट सेलर बनी है. और ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये पहाड़ी में 3 महीने में क्रॉस कर पाया, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स दैट आई डिड ऑन माय फर्स्ट माउंटेन. और 1 साल पहले मैंने सारे कॉर्पोरेट बिजनेस क्लास तो मैं ट्रेवल करता नहीं था कभी, क्योंकि मुझे कभी अपनी आदत बिगाड़नी नहीं है. गाड़ियों का शौक नहीं, फैंसी कुछ नहीं. आई यूज्ड टू वॉक टू वर्क. सो स्टे हम्बल, बिकॉज व्हेन यू आर डाउन द माउंटेन, नोबडी केयर्स अबाउट यू, एंड दैट इज वेयर आई वांटेड टू बी. आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल इन माय स्किन. When people don't see me as a CEO, but see me as Avinash Kaul, who's a Kashmiri Pandit boy, who is a mountain climber, and I always want to be known as a mountain climber. I don't want the baggage of those titles in my haversack on my next climb. I had to demolish it. I had to throw it out. Because that weight of everybody's expectation, अरे अब अविनाश कहाँ जाएगा? उसका अगला डिसीजन क्या होगा? अरे भाई आपसे क्या लेना देना? मैं अपनी पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हुआ या मैं फेलियर हुआ हूं, वो मेरी प्रॉब्लम है. और मेरी मोटिवेशन ये है कि मेरे हाईएस्ट एक्सपेंसेस इस वक्त हैं और मेरी इनकम 0 है. वो फ्यूल, वो मोटिवेशन मुझे अब लेके जाएगा, क्योंकि मेरी इमारत जब मैंने बनाई थी, मैंने उस टाइम पे ये सोच के नहीं बनाई थी कि इतनी ऊंची इमारत बनेगी. मगर मैंने तब 6-8 फ्लोर्स नीचे बैठ के अपनी इमारत की फाउंडेशन बनाई थी, जब मैं रात को 2-2 बजे तक काम करता था. उसके बलबूते पे मेरी एक शाइनी बिल्डिंग बन गई. लोग उस शाइनी बिल्डिंग को देखे इंप्रेस होते गए, कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाता है. मगर कोई भी बिल्डिंग जो 28 साल पुरानी हो गई, उसमें फिर प्लम्बिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, मेसनरी टूटने लग जाती है, और वो सिर्फ उसी को पता होता है जो उस बिल्डिंग में रह रहा है. करेक्ट. दूसरे वालों को फिर भी वो ग्लास दिखता है बाहर, क्योंकि ग्लास एजलेस है. ग्लास में नहीं पता चलता बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्योंकि फिर लोग क्लैडिंग लगा देते हैं बाहर ग्लास की, अंदर वही टूटी फूटी बिल्डिंग होती है. मैं वो नहीं करना चाहता था अपने करियर के. जब पता है कि भाई अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सब कुछ बदल गया, एम आई रीस्किल्ड फॉर द नेक्स्ट 30 years? आई वॉजंट. सो आई डिड व्हाट आई नो बेस्ट, डिमोलिश. वो जो यूट्यूब में आपने वीडियो देखे होंगे, डेटोनेटर्स लगा देते हैं बिल्डिंग की ताकि साइड की बिल्डिंग डिस्टर्ब ना हो. मैंने अपनी बिल्डिंग को डिमोलिश की, मगर वो जमीन नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जमीन प्राइम रियल एस्टेट थी. और वहां मैं अपनी नई इमारत बना रहा हूं. वाह. और वो इमारत ऐसी अब बनेगी जो अगले 30 साल तक चलेगी. That is what you explain in your book as controlled demolition. demolition. Wow. And this is the last part of my life, which is purpose. इस टाइम में किसी और को करने के लिए मेरा पर्पस ये है कि मैं और ज्यादा लोगों को ये चीजों की एक जर्नी, एक कॉमन लैंग्वेज में समझा पाऊं लोगों को, ऑन हाउ टू डील विद योर करियर. करेक्ट. बिकॉज एजुकेशन में काश के ऐसे कोर्स होते जो आपको मनी मैनेजमेंट सिखाते, जो आपको करियर मैनेजमेंट सिखाते. ट्रू. अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई भी कोर्स नहीं है एजुकेशन सिस्टम में जो ये बताते हैं कि जब आपको बॉस गाली देता है कैसे डील करते हैं.
Very and that true. is the pity. And someday I hope I am able to build courses around that, retreats around that, Mhm. where I can build the mental resilience for Absolutely. fellow climbers, Absolutely. and that they can pass on the baton to the climbers after them. For me, that will be a life's mission, and that's what I've set out to be. I may take up a corporate job, I may do anything else, but that won't go away. All my weekends, all my free time will go into evangelizing this. And that is my mission in my life, and that is my purpose. Because I was lucky to survive all the avalanches, and I respected the mountain. And I'm now on my next climb. I want to respect that mountain. I don't want to cheapen it. I don't want to commercialize it. I just want to be respectful and grateful that I have been given a chance to do this. And if there is a place that I want to die climbing a mountain, not at the top of the mountain. Avinash, so lovely meeting you. Thank you. This is like I am at a different level right now. I feel like let's start and climb rest of the mountains that I could always see, and I thought that should I, So I think you have just broken all those things and said if you're able to see the mountain, go. It is for you, because I think what I'm trying to understand from you is if you can see the mountain, it is calling you. It's your invitation. Go and climb. Yeah. And if it isn't calling you, find the mountain. Go and Go find the climb. mountain. Because mountains make you alive. There is a reason all Swamis and all sadhus in the world never used to go to the beach to meditate. They used to go in the mountains. Tapasya उसको बोलते थे. Harsh environment में कपड़ों के बगैर बैठ के तपस्या आती थी. It makes you one step closer to God. Correct. It cuts out all the surround sound from you. And then you're one with yourself. True. And that is the time when you submit yourself to a larger force than yourself. And that is when you grow. Wow. I think on the spiritual side, we will need another conversation. Anytime. But I have thank you for explaining it so well. I'm very sure that जो लोग सुनेंगे उनको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होगा ये बात सुनने से. जितना भी आपने But thank you for making my life easy, because I don't think I had to ask you anything. So thank you. I will come back to your first question that you asked me. Please. As we close. Yeah. Now you know why the book. Yeah. The book, I'm told a bestseller does only 10,000 copies in a year. Yeah. In India. Yeah. You have 2.58 lakh subscribers on your YouTube channel. Yes. If even 10,000, 20,000, and I know some of your episodes have done in lakhs, those many more people hear about the next mountain, yes, my job is done. It's not about the book. I'm very sure. It's the And purpose, not just it's the mission. Absolutely. And not just YouTube. On LinkedIn also, there are so many people. In fact, in the corporate world, the questioning that I had with you is not something that is pre-planned or we thought of these questions. Periphery, definitely. I have to respect my teams who do the research on the guests who come, and I sit with them. We understand and decode the profiles. But having said that, the questioning that I had with you, I know that most of the people in the corporate world needed these answers. Because हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमको वो game play करना नहीं आता. And the game is not with others. The game is your own game. It's not a game. As you rightly said, not a game. It is your submit. It's a purpose. It's a purpose. It is your own game. When I say it is your own mindset that you have to understand. Yes. And very beautifully you explain that it is nothing but your own self-reflection. You are the only one coming in your own way. Wow. Nobody else. That's the highlight for me of this conversation. But we went on researching and we said, we put your name on Google and you know who Avinash Kaul is. But then there are people who have been asking questions and want answers from authors of, such repute and such extensive work from their life that they have been able to put out for the world in the form of a book. So here are these questions. These are little technical questions, but I would attempt, because with your name, these are the questions and these are the keywords that were recurring. So your easy answers, short answers, so that I can take more questions. Will AI replace jobs or will it replace people who do not know how to use AI? Your view. AI वो अलादीन का चिराग है जिसमें से जिन निकल के आता है. अगर आप नहीं बता पाएंगे जिन को कि करना क्या है, तो आपके पास अलादीन का चिराग है क्यों? और वो जिन आपको खा जाएगा. It's a good slave. It's not a good master. So anybody who's into decision making and who knows
what to tell AI to get done will survive. All the people who are not using their brains to do anything, their jobs will go. Well said. If you were graduating from college in 2026, which career would you choose? Doesn't matter. It really doesn't matter. Climb a mountain. You will realize whether you want to climb that mountain or not in 3 months. Don't like it? Come down. Climb another mountain. Perfect. Don't like it after 6 months? Come down. You will find the mountain. वो जैसे अवतार में देखते हैं ना कि वो जो उनके ड्रैगन्स होते हैं, you have to tune yourself, Yeah. and when you find your dragon, then you ride. Mountains is pretty much like that. बट जो चलिए यंगस्टर्स तो हैं, सही। हाँ, जो यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है वो ओवर थिंकिंग में बहुत फंस जाते हैं. उनको लगता है ये राइट माउंटेन है ही नहीं. मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ना, देखिए हाँ। क्या होता है, स्विमिंग आप किताब से नहीं पढ़ सकते, करेक्ट. आप कूद जाते हैं पानी में, देन सर्वाइवल टेक्स ओवर, एंड देन आप जख मार के भी दूसरे पार चले जा सकते हैं. ऐसा ही इसमें है. तो But भाई jump- इतना रिसर्च ना कीजिए कि भाई कदम ही ना रखो पानी में. रिसर्च कीजिए पहाड़ी को, माउंटेन फेस कौन सा है, कौन सा सीजन अच्छा है, कहाँ पे आपकी स्किल सेट है. अगर आप प्रोएक्टिव, अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप्स हैं, नेचुरली हो सकता है आप सेल्स में बेटर हो. अगर Correct. आप एनालिटिकल हो सकता है फाइनेंस में बेटर हो. तो वो अपना असेसमेंट कर लीजिए. करेक्ट. अच्छी चीजें हैं. उसके बाद रॉक फेस ढूंढ लीजिए कि कौन सा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, और वहां से चढ़ जाइए. मैं तो रिसर्च से आके सीईओ बन गया. कितने लोग रिसर्च से सीईओ बने हैं, फैंटास्टिक. और मैं 12 साल में बन गया. तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग रिसर्च से बनने शुरू हो जाएं, हाँ, राइट? क्योंकि मेरी असेसमेंट स्किल सेट मैच हुई होगी एनवायरनमेंट में उस टाइम पे. करेक्ट. इट्स नॉट नेसेसरी कि कल भी होगा. तो डोंट फॉलो ब्लाइंडली. लर्न फ्रॉम पीपल्स मिस्टेक्स मोर देन योर ओन मिस्टेक्स ऑल्सो, बिकॉज यू विल नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल द All the मिस्टेक्स mistakes yourself. Very well said. Is television dying or is it simply evolving? Television is a video, so video is not dying. Good answer. I like that. Okay, with YouTube, podcasts and AI changing everything, what will be the media industry or how it will look like in the next 10 years? तो बहुत लंबा हो गया. 5 years में आपको कहाँ दिखता है What media was industry? media 1000 years back? People talking gossip to each other. हाँ, हाँ, That was media. correct. Then it went into print when people were little far away. So हर एक को कान में नहीं बोल सकता था या सामने नहीं बोल सकता था, तो तो चला जाता था, दूर बोल देते थे. हाँ, उसके बाद और थोड़ा दूर हो गया जब आप ब्रॉडकास्ट करने लगे. उसलिए वर्ड था ब्रॉडकास्ट, दूर कास्ट करो. cast. ठीक है. Yeah, yeah. उसके बाद ब्रॉडकास्ट पता नहीं कहां तक चला गया, क्योंकि जब तक लोगों के पास डब्बे थे, सैटेलाइट थे, एंटेना थे, तब तक आ रहे थे. हाँ, अब लोगों ने इंडिविजुअल डिवाइसेस करने लगे तो स्ट्रीमिंग हो गई. correct. स्ट्रीमिंग आईपीज के द्वारा आपके डिवाइसेस पे आने लग गई, राइट? तो आप वहां पे कंज्यूम होने लग गए. Correct. कल को कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे वो मैट्रिक्स में दिखाते थे कि भैया जहां वो स्क्रीन सडनली मैं वर्चुअली आपके सामने आ You and जाऊंगा, I and तो ये Yeah. कुछ भी होगा. तो ये सारा Correct. मीडिया ही तो है. Hmm. तो मीडिया कभी डाई नहीं हो रहा है, मीडिया का कभी रोल इवॉल्व नहीं था, फॉर्म चेंज हो रहा है, Hmm. मगर बेसिक कॉन्सेप्ट इज कम्युनिकेशन. Hmm. एक जने से दूसरे जने से हजारों बिलियन लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए बात, वही मीडिया है. What is the biggest career mistake young professionals are making today? Not understanding how long they have been at the same position, not pacing themselves, not having an objective कि भैया कितने साल में कहाँ जाना है. इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि भाई ज्यादा देर रुक चुका हूँ. कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. आप थोड़ा किसी सा? भी जोन में उसको बोल दीजिए. हाँ, कंफर्ट जोन हमेशा अच्छी नहीं होती. कंफर्ट जोन ये भी होती है दैट समटाइम्स इट्स द स्टॉकहोम सिंड्रोम, yeah, yeah. that you're caught with a bad boss, but now you cannot leave him Hmm. because you don't know any other life, or a narcissist. You're stuck in that. Hmm. So it's not a comfort zone, it's just a stagnation. Hmm. स्टैग्नेशन से डरिए, बिकॉज स्टैग्नेशन में ही मस्कीटो आते हैं, और मस्कीटो करने के बाद फिर बीएमसी आती है, वो केरोसिन डाल के मार डालती है. Hmm. तो roughly, as per you, 5 to 7 years in one organization is a good time? It's nothing to do with that. It is Okay. how you pace yourself. Okay. Where do you want to be? Not everybody needs to be a CEO. Correct. वो तो आपकी डेफिनेशन, आप क्या बनना चाहते हो. हाँ, आपकी पहाड़ी छोटी है, बड़ी है, उसके हिसाब से होता है. हाँ. अगर मुझे 8,849 मीटर्स जाना है माउंट एवरेस्ट के, और मुझे लगता है कि मुझे 30 साल में जाने, तो मुझे इतने मीटर अगर हर दिन करता रहूं तो ठीक है ना. तो, हाँ. अगर You किसी ने pace चुन कर yourself. लिया 1000 मीटर का पहाड़ी चढ़ना है, वो उसी हिसाब से पेस कर ले. Hmm. ब्यूटी यह है पूनम कि आप ये देखिए, सबके स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं. Correct. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कश्मीर में वहां से शुरू हुआ, किसी और का दिल्ली बॉम्बे में ऑलरेडी अंबानी स्कूल में पढ़े हुए हैं, Hmm. बहुत ही ब्रिलियंट स्कूल है, वहां से शुरू हुए हैं. Hmm. तो मैं वहां से शुरू करके आया, तो मैं मैरियाना ट्रेंच से शुरू किया हूँ, Hmm. जो कि -10,000 15,000 फीट है. अगर माउंट एवरेस्ट को आप उड़ेल देंगे माउंट मैरियाना ट्रेंच में, पानी में डूब जाएगा. Hmm. तो वो तो दिखता ही नहीं है ना किसी को, क्योंकि आपको sea jump level start के ऊपर करना आता पड़ा. पड़ता है. आपको जंप स्टार्ट Right. करना पड़ा. तो हर एक को, आप भी ग्वालियर से शुरू किए हैं, आप भी तो मीन सी लेवल से नीचे ही से ही आई हैं. बहुत नीचे से. तो वहां से यहाँ आई हैं, उसके बाद आप अपनी चोटी चढ़ी हुई हैं.
तो distance is not only from mean sea level upwards. Correct. Everest is from mean sea level 8,848 or 49 now. But if you are a climber who's coming from Mariana Trench, Yeah. then it is probably 28,800 and Plus some to feet. that. True. That is the measure of resilience. That is the journey that you have covered. Don't get fooled by the 8,849. True. When you hired leaders, which quality mattered more than experience or intelligence? In your hiring experience, what did you look for? Intent. Really? But Intent is it क्या possible to find intent in a half an hour interview? इंटरव्यू से फर्क नहीं पड़ता है. Most of the judgments in my mind used to be done before the interview. How? Because you look at, is he looking for social currency? Is he looking for a chatter? How active? मतलब horribly आप बोलोगे भैया मैं वेटिंग कर रहा था, हाँ, but वेटिंग हो जाती है. हाँ करते हैं If जब you are a CV public आता है. person, if you are seen too much, Yeah. if you are generally, a social climber in many Yeah. ways, then Yeah. trying to look at more networking things, which means आपके पास बहुत समय है ये सब करने के लिए. तो आपका इंटेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जर्नी डिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ है, सबसे पहला सवाल वो है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, आप कितना नॉइज ट्यून आउट कर सकते हैं, आपका मेन रॉ मटेरियल है या नहीं है. आप मेरे साथ इंटरव्यू में आए हो तो बेसिक स्किल सेट तो है ही ना. उस चीज को तो नहीं मैं क्वेश्चन कर सकता कि भाई सेल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फाइनेंस कर सकते हैं, वो तो बेसिक है. अदरवाइज आप इंटरव्यू में पहुंचते कैसे? Correct. क्योंकि you would have crossed some levels to reach here. Yeah. Now it's just the person and who you are as a human being. And will you be able to handle the responsibility of hundreds of people below you? Or are you self-obsessed that you are only selfish concerned about yourself? And you always don't get it right. But People you may try fool to. you when You they are can. talking. You can fool. Too short a. It's too short a window because you've not Correct. spent enough time with them. Yeah. But unfortunately, that is how it is. Correct. And that is how then decisions go wrong as well. So, should young professionals chase passion first or financial security, as per you? देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज अ बाय प्रोडक्ट. मेरी जिंदगी की अगर बात आप सुनेंगे तो मैं सरस्वती उपासक हूँ, लक्ष्मी उपासक नहीं हूँ. फॉर मी लर्निंग इज एवरीथिंग एंड लर्निंग इज क्लाइंबिंग. अब आप उसको पैशन का नाम दे रहे हैं, मैं उसको लर्निंग का नाम दूंगा, मैं उसको क्लाइंबिंग का नाम दूंगा. दैट कम्स फर्स्ट. डोंट चेज मनी, मनी विल चेज यू. What is one leadership lesson you learned after becoming CEO that completely changed the way you led? Only Command one. is lonely. You are completely alone. You have nobody to talk to. And nobody understands you. And you have to be able to live with yourself. No friends, no enemies, just by yourself. Solitude. And it's very tough. Then I think all CEOs are almost like, sages. अकेले ही सब करना है उनको. कितनी देर आप वहां बैठते हैं वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जनरली काफी सारे लोग, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग एनीथिंग, बट मेनी पीपल 2-3 साल सीईओ कर लिए छोड़ देते हैं, या कुछ हो जाता है कर लेते हैं, चेंज हो जाता है. बट इफ यू स्टे इन अ लॉन्ग प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू बी रियली very, very isolated. You cannot be a poster boy. You cannot have all the targets around you. You cannot have everything around you, targets on your back in that sense, right? You have to be comfortable in that solitude. And that's a scary part, because then you don't have anybody to cheers with, और दुनिया जहां आपको बोले कि भाई तू ये है, stay grounded भाई. वो कुर्सी को तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं है. तुम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हो. जिस दिन हट जाओगे कुर्सी से, आटे दाल का भाव पता चल जाए. After I have quit, 99% of the people who would say good morning to me have vanished. And I knew it. So I'm not heartbroken. I'm not disheartened. It was known to me. But अब उनको किसी और को गुड मॉर्निंग भेजना पड़ रहा है शायद. और ये भी हो सकता है कि कल को मैं ज्वाइन कर लूं, वापस से गुड मॉर्निंग बोलने आ जाएंगे. ना तो मैं तब कभी कैरीड अवे हुआ था, ना तो अब कैरीड होगा, ना तो मैं कभी हैप्पी था, ना तो मैं कभी दुखी हूं उनसे. But this understanding is important. They are doing what they are supposed to do, or what they think they are supposed to do. I have never done that in my life. I have never said, I have never been and chaplus to any of my bosses. I have generally tried to challenge my things, because my loyalty was always to the organization and the goal. True. Not always to an individual, because they can have different challenges. True. Or different interpretations of them. But I would larger think of the larger goal, which is why I've been most comfortable in those organizations where there's an organizational goal. And tough organizations. Media industry is supposed to be the most difficult industry. Anyway, 20 news channels, Yeah. magazines, इतना सारा बहुत सारी Every day. चीजें होती हैं, और different languages जो आप समझ भी नहीं आते हो, तो dynamics काफी होता है, strong होता है. the last question, Avinash ji. If someone wants to become a CEO one day, what should they stop doing immediately? Stop
wanting to be a CEO. Just climb and climb every day one step. It will happen by default, not by design. CEO बनने जाओगे तो बनोगे नहीं यार. तुम पहाड़ी चढ़ते जाओ. मैं थोड़ा ना कोई टारगेट लेके गया था मुझे CEO बनना है. पहाड़ी चढ़ते जाओ, कभी ना कभी तो खत्म ही होएगी ना. जब खत्म हो जाएगी तब CEO बन जाएंगे. तो वो लोग देंगे टाइटल. Perfect. Thank you so much. I think this is one of the best conversations I had. Thank you for your energy, vibrancy and so much of, ये जो knowledge आपने दी है, ये ना तो किसी किताब में है, ना कोई CEOs हैं. I don't think आप इस तरीके से बोल भी पाते या बता पाते या express कर पाते अगर आप अभी कहीं के CEO होते तो. Exactly. So this freedom is because of the book. Exactly. Thank you so Absolutely. much. Thank you so much. Thank you Grateful so to you much. for taking the time and the effort to do this. It's my privilege to be here. Thank you. Thank you. Thank you. Hello and welcome to the PVT Show podcast. I am your host Poonam Vijay Thakkar. On this show, I bring to you conversations with leading authors and top leaders who energize the mind, challenge the norms, and awaken a purpose. It's all about conscious growth with one powerful book and one powerful story at a time.